Start करें? Yes. Okay. Dr. Usman, are you ready? Yes. Okay. 25-year male patient has presented in the has been brought in the emergency department with history of gunshot wound abdomen. The patient is blood pressure is 80, systolic is 80, his abdomen is distended, is tense. So how will you approach this patient? Okay. I will approach this patient according to the ATLS protocol. I will start resuscitation immediately, and while I will simultaneously start taking history, I will control his airway, breathing, and circulation. I will talk to the patient, and if his airway is intact, then I will, because he has gunshot wound, I will ask to know whether it is a Okay, his bullet or. airways okay. Okay, I will start a resuscitation. I will simultaneously ask my You have started with colleague. the IV fluids. What Yes, next? I will activate trauma response system and massive transfusion. I will inform laboratory, all concerned anesthetists, and everyone that patient has gunshot wound. We might Okay, shift him to OR. At the same time, I would like to do. I will pass NG Foley's. I will attach okay, pulse oximeter okay, done. and So you have started your resuscitation, and what's the next step? then I will do the fast scan to see Okay, intraperitoneal fast scan correction. shows there's a moderate amount of the hemoperitoneum. Yes, I will inform anesthetist that there is a gunshot wound. I will examine the front and back side of the abdomen to see the trajectory of the bullet, and I will also do the digital rectal Okay, there is a examination. there is a one entry wound in the epigastrium. Okay, and exit wound. I would also like to know about There's no exit wound. exit wound. There's no exit wound. No, the patient's blood pressure is 60. Sorry, 70. Systolic is 70. Okay, then I will Pulse is shift the 140. while resuscitating the patient. I will shift him to OR because he needs urgent laparotomy, and I will transfuse the blood after crystalline and in the ratio 1:1:1 of RBC, platelet, and Okay, FFP. how will you perform the laparotomy? I will completely drape the patient from suprasternal notch to the mid thighs, and I will do a midline formal laparotomy, Okay, okay, and you have made the incision. Then what next? then I will immediately suck the whole blood. I will pack the abdomen thoroughly, all four quadrants, right hepatomorism pouch, subhepatic spaces, paracolic gutters, and Okay, pelvis. you evacuated 1 liter of the blood has been you have aspirated. You have Yes. performed the four quadrant packing. What next? Okay, then I will ask the anesthetist to continue resuscitation, and I will So remain in contact. he has given the 2 unit of RCC and FFP. No, what next? No, the anesthetist is saying that you can proceed. Okay, then I will stepwise remove the packs and see whether there is any active bleed or not. I will do the damage control first. I will. My first aim would be Okay, no, to stop the bleeding, what would you ongoing like? bleeding. What would you like to know? So once Uh, you were removing the pack, yes, I would like to know whether which is the point of active bleed, because I would first of all control bleeding and prevent contamination, and then I will ask an anesthetist okay, to there the resuscitate. supracolic hematoma in the Okay. midline. Okay, it means that it is zone 1 injury, retroperitoneal. I will open the lesser sac. I will see whether there is any active bleed or not, and whether there is any pelvic hematoma, retroperitoneal. There's a hematoma in the zone one. I will see because it is zone 1. I will activate. I will also call help from my senior colleagues, vascular surgeon, because zone 1 contain So aorta, vascular surgeon is IVC. not available. He is not Okay, then available. I will, okay, then I will see what is the bleeding point. Probably it can be from aorta, pancreas, So no, IVC, or as the patient's blood pressure is it's 60. okay. Then I will immediately try to cross clamp the aorta. How will you cross clamp the quota? I will divide pancreatic duodenal ligament and gastroduodenal ligament. I enter lesser sac, and Pancreatic I duodenal ligament. Where is the no, pancreatic sorry, duodenal ligament? hepatoduodenal ligament, So and hepatoduodenal ligament contains which structures? uh, no, I will it contain hepatic artery. I will Mhm. divide just peritoneum to expose the hepatic artery, and I will divide the right crux of diaphragm From and where? enter.
from behind the stomach. I will elevate the stomach towards caudally and retract it on the left side. And I will elevate the left lobe of liver toward right side to expose the supraceliac part of aorta. And Okay. I will make space and clamp supraceliac aorta Okay, to you have control the. clamped the aorta. What's the next step? Then I will see what is the. I will ask the anesthetist to continue resuscitation, and I will call again a vascular surgeon. I will try He to is not contact him available. to. He is not available. Okay, then I will, if there is an aortic injury, then I will do the damage control and What will you arrange. do? In damage control, I will thoroughly see the bowel and see whether there is perforation. I will apply stapler to prevent contamination, and then I will see the liver, spleen, and all mesentery. I What will will you Okay, what will you do for this him? Where will you what are the likely injuries? because the epigastric region is a very sensitive region. It has a can injury of pancreas, duodenum, aorta, Yes. IVC, stomach, transverse colon, Okay, you and notice that the celiac artery, it's lacerated, and the duodenum is also there's a grade 3 injury of the okay, it means involving that the second part there of is. the duodenum. Okay, this means that the patient has a massive multiple organ injury. I will at this stage just do the damage control surgery, and I will always What try to damage solve. control surgery? Can you explain what damage control surgery? Yes, I will put drains. I will just pack the abdomen, and I will call for help for senior surgeon, and Okay, what will then he do? he- that he can vascular surgeon can do then we will after packing and controlling the bleed, then we can shift the patient to ICU for further resuscitation. So you will And not do anything for the duodenal injury. I will just duodenal injury depend upon what is the extent of duodenal It's a injury. grade 3 injury. I've told you it's a grade 3 injury. Okay, then I will do the just proximal distal to the injury. I will uh, transact the duodenum and do the duodenal exteriorization. I will not try to repair the injury. I will make controlled triple tube bypass of the duodenum. I will put one tube in stomach and one in jejunum and one in duodenum. And Okay, it suppose and okay, let's suppose that there's a hematoma. It was not in the supracolic, it's a infracolic hematoma. okay. Then Uh, how did this uh, change your approach? my approach, if it is zone 1 hematoma and patient is unstable, I will try to do minimum to just control the bleeding and prevent contamination. I will not Suppose the do. patient is stable. Okay, if patient is stable, then we can repair the duodenum and No, I'm talking about there's a hematoma. I'm giving you a separate scenario. No, okay, there's infracolic hematoma in okay. the midline. Yes, I will see whether this hematoma is expanding or not, and the patient is vitally It's stable or not not. expanding. Okay, then I will continue. I will see. It means that there is no injury to the major vessels, and I will continuously keep an eye on the vital sign of the patient while resuscitation, and I will do the complete examination of the abdomen, Yes. and Then, so what will you do uh, for this hematoma? uh, I will get proximal. I will do medial visceral rotation of the. I will see the trajectory whether it is affecting right side or left side. If on the left side, it means that aortic injury is more. There are more chances of aortic injury, and on the right side, it is chances or of vena cava injury. So I will, if on the right side, I will do medial visceral rotation to get proximal and distal controls of the major vessels to see whether there is any injury to these vessels or not. I will contact vascular surgeon for help, and if there is any injury Okay, to thank the you. major Thank vessel, you. we can Thank you, Dr. Usman. repair. Thank you. Uh, G. Usman, Yes, it was how was a your major. performance? It was
I think it was a satisfactory performance. I don't know how can you assess me, because I have followed the trauma protocol completely. I have not wasted any time to shift the patient to OR. I have activated all resources of the hospital. I have taken all colleagues to the on board, and Okay, one where, thing okay. I think one thing I missed is that I should have contacted endovascular colleague to if he can balloon the aorta, but it was not an option in this case, as I think, because we had to otherwise go into operating room and open up the patient and see do the vascular repair. If I had been vascular surgeon, I would have repaired the instead of damage control, I would have ligated proximal and distal control of the aorta myself and repair the aorta according to scenario if vascular surgeon is not available. If he is available, Mhm. then he can do it for me. No, I didn't give you I didn't mention that it's a aortic injury. I just gave you there's a hematoma, Mm. right? It's a Yes, supramesocolic hematoma. yes, Now, this could be because of the injury to the celiac. And again, I gave you the scenario that it's the celiac artery is injured, right? It's not, I didn't mention it's aortic injury. mm, So yes. how was your response related to your management of this hematoma? I think my response was a bit brisk in mobilizing the whole stomach and duodenum, and but it was inevitable. So no, I would have to packed. get the control, no, so to get the control, so the patient is deteriorating. So to get the control at the aortic, at the hiatus, the Yes. proximal control, I'm talking about that. I could have done thoracotomy, left thoracotomy to Oh get no, supra. procotin, that's the right approach. You went to directly to get the control. So the first response is you can apply the pressure with the Richardson retractor over the laparotomy pad. You can just compress it, and you can ask your assistant to compress the hematoma with your laparotomy pad, and then so next step is dividing the lesser omentum, not the hepatoduodenal ligament, lesser Yes, omentum. yes, And you yes, need to keep in mind there could be a accessory hepatic artery जो left side से आई होती है. yes, और क्या करें? Assistant, I will ask my assistant to retract the stomach to the left and the esophagus to the left, right? So once you have incised the lesser omentum, so you are in the lesser sac. So just above that, you need to divide this right crus of the diaphragm, and with there you can apply it. So before applying the clamps, you can just put put a pressure. pad, Yes. laparotomy pad, and push it with your hand or with the Richardson retractor, so you can get the proximal control, right? Yes, I missed this thing, pressure. So then then afterward, I will assess the situations. Where is the injury? Then I will explore the hematoma. Now I would like to see what are the injuries. So there's a possibility of celiac artery injury because it's supracolic, no? Okay. Yes. So so then depending upon it's a celiac, then you need to see can it be repaired. Depending upon there are associated injuries, you can ligate it. Celiac artery can be ligated, but you need to do the cholecystectomy if you are ligating the celiac artery because the blood supply of the gallbladder will be gone. So there could Okay. be injury to the hepatic artery, proper hepatic or common hepatic artery. अब इसके अंदर है. Then I will explore the duodenum. अब जैसे आपको मैं दिया, आपने कहा ना next I will explore the pancreas. I have already opened the lesser sac, and then I will perform the cauterization. Duodenum को भी देखूंगा कि उस पर कोई इंजरी तो नहीं है. So once you have noticed that there's a grade 3 injury of the involving the duodenum, so you need to ask, okay, is there the ampulla is involved or not? What is the extent of the injury damage to the pancreas? अब उसके बाद फिर देखना can you depending upon the patient's condition, जिस वजह से patient is unstable. So what you can do is you can do the जो अपने staplers होते हैं उसके साथ कर सकते हैं. So basically आपने उसको close तो करना है ना. Simple Hmm. अपने वैसे उस पर drain डाल के तो बाहर नहीं आना. Hmm. ठीक है. अगर छोटा रेंट है तो you can primarily close it. Yeah. ठीक है. और बाकी आप ड्रेन डालेंगे. बाकी then I will search the rest of the peritoneal cavity. Are there any other injuries? अब इसी तरह जो नीचे वाला मैंने दिया सिनेरियो इंफ्राकॉलिक हीमाटोमा, तो अब इंफ्राकॉलिक हीमाटोमा दैट नीड्स एक्सप्लोरेशन. Hmm. इट्स पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है ना.
जी। उसमें तो इंडिकेशन whether it's pulsatile, non-pulsatile, whatever the situation is. Now if the zone 1 hematoma, the first approach is left medial visceral rotation. आपने रोटेट करते हैं, क्या हो सकता है, एओर्टिक इंजरी तो नहीं है. If there is no signs of aortic injury, then you go toward the right side. फिर आपने right medial visceral rotation करनी है कि IVC की हो सकती है. हम्म, ठीक है. और फिर उसके प्रॉक्सिमल क्लैंप और बाकी, और इसमें आपको क्या है, जो डैमेज कंट्रोल क्या है, वो चीजें हैं, आपने शंटिंग का जो करना है, शंट डाल सकते हो. यू कैन प्लेस अ टेम्पररी इंट्रावेस्कुलर शंट जहां पे भी डैमेज कंट्रोल को वेस्कुलर का है टिल द टाइम अराइवल ऑफ द वेस्कुलर सर्जन. ठीक है. बाकी सर नुमान बताएंगे, अब बल्कि उमर भी आया हुआ है. सलाम वालेकुम उमर. उमर जो ना म्यूटेड है सर. वैसे नुमान आप सर कुछ ऐड करें. ठीक है अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं सुन रहा था आपकी बातें, आप लोग प्लीज कंटिन्यू करें, मैं सुन रहा हूँ, साथ साथ में आखिर में बात करता हूँ, मैं अच्छा. एक काम कर रहा हूँ साथ साथ। अच्छा ठीक है जी. सर नुमान. अच्छा, शुरू में जब तू स्टार्ट लेता है तो मेरा ख्याल है आप पहला जुमला ये बोल दें कि पेशेंट इज सीरियस में पहले ही अपनी ट्रॉमा टीम तूने बाद में बुलाई है अपनी जो जो भी ट्रॉमा टीम कह लें, जो भी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करना है। दूसरा, एयरवे के बाद ब्रीदिंग मैंने तेरे मुंह से नहीं सुना, मतलब ब्रीदिंग तुझे जरूर जिक्र करना चाहिए। जब एपिगैस्ट्रियम में है तो कुछ भी लंग्स में भी कुछ भी हो सकता है या हार्ट में भी कुछ हो सकता है, तो ब्रीदिंग का मुझे लफ्ज नहीं तूने मेरे ख्याल में सुनाई दिया मुझे। क्यों शौकत? सर बताया, मैंने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया, उन्होंने कहा ब्रीदिंग ठीक है। अच्छा, ये एक मैं बार बार जो पता है कह रहा हूँ, अब चूंकि हमने ये किया ना स्पीड से, मैं आगे वो कर रहा था, इंटरप्ट कर रहा था, तो इंटरप्ट करने से अपने सीक्वेंस को वो नहीं, खराब नहीं करना. ठीक है. उसमें आपने सही कंपोज है। रहना, अपने आंसर जो है ना, वरना क्या होता है, मैं तेज तेज बोल रहा हूँ तो आप भी उसके साथ अपने उस पर सीक्वेंस से हट जाते हो. तो वो ये काम नहीं करना, आपने हम्म, उसी को फॉलो करना है. हम्म। और सर. फिर साथ ही आप फिर साथ ही आईवी लाइन का मेरे ख्याल में जिक्र कर दिया था आपने, टू लार्ज बोर आईवी कैनुलास। ये हम्म. बल्कि वो तो शौकत ने कहा था कि टू लार्ज बोर आईवी कैनुलास, तूने शायद नहीं वो बोला। तो टू लार्ज बोर आईवी कैनुलास साथ ही बताएं कि हमने सैंपल भेज दिए, वो भी शायद तूने जिक्र कर दिया। फिर ओटी ले गए, ओटी जाने से पहले भी आप ना मेरे ख्याल में सीनियर सर्जन को पहले भी कांटेक्ट कर लें, ओटी जाने से पहले भी और दूसरा ये बता दें कि आई विल मेक श्योर द थिंग्स आर रेडी, सीरियस। आपकी सेट रेडी, या थोराकोटमी सेट, वेस्कुलर सेट, आपके दूसरी चीजें, मतलब इतने इंस्ट्रूमेंट को मैं चेक करूंगा कि आई विल चेक द इंस्ट्रूमेंट आर रेडी, ब्लड इज अवेलेबल. सही। ठीक है, बाकी ठीक है। अंदर जाके तो बाकी शफकत ने बता दिया अंदर जाके क्या करना है। आपने पैकिंग की, स्टेबल किया उसको, और अपना ऊपर हीमाटोमा का एक्सप्लोर किया। डूडनल इंजरी को तो वही जिस तरह शफकत ने कहा, डूडनल इंजरी को आप रिपेयर की ट्राई तो मारेंगे हमेशा, उसको ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। और अब ये मुझे नहीं पता, अगर ये ग्रेड 3 तो मेरे ख्याल में रिपेयर होने के काबिल नहीं होती है, तो 50% से ज्यादा सर्कमफ्रेंस होता है शायद इसका, ग्रेड जो 3, चला जाता है। यस, 50% से ज्यादा है जो D2 का है ना. तो और D1, क्या गाइड? 3 और 4 उसमें अप टू 100% भी है, उसके ग्रेड 3 है, 4 5 नहीं है उसका. लेकिन इसमें भी सर जितनी रिकमेंडेशन है ना ड्यूडनल इंजरी में, कि प्राइमरीली अगर क्लोज कर सकते हैं दैट इज द बेस्ट ऑप्शन. प्राइमरीली अगर नहीं कर सकते, डैमेज कंट्रोल जो है अगर कि ना एसोसिएटेड. अगर ना हो सके तो गैस्ट्रोजेनोस्टमी कर दें। अच्छा, जितने एनास्टोमोसिस अवॉइड करते हैं, जो सर स्मोसिस तो लेटेस्ट अवॉइड उसकी है करना ना, है कि वो नहीं कर, प्राइमरी में। वो आप क्या कहते हैं, यू कैन Rest- यूज अ स्टेपलर, स्टेपल किया प्रॉक्सिमल को, डिस्टल को, उसको बंद कर दिया. ठीक है. ये वक्ती तौर पे. और जो पेंक्रियाज की भी इंजरी है फॉर एग्जांपल, जो सीबीडी भी उड़ी हुई है एम्पुला की, तो उसको लाइगेट कर दें. पेंक्रियाज के ऊपर भी आपने लॉकिंग स्टिच लिए. ठीक है. और ऊपर ट्यूब कोलिसिस्टॉस्मी डाली, तो उसको ड्रेन कर लिया, ऊपर एनजी डाल दी. ठीक है. और ड्रेन डाले, कम आउट. ये डैमेज कंट्रोल के. फिर उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन होनी वो बाद में होगी, आफ्टर जो उसकी रिससिटेशन आईसीयू में जाएगा, तो डैमेज कंट्रोल. अगर एसोसिएटेड इंजरी, स्पेशली ग्रेड 3 एसोसिएटेड विद आप कहेंगे अदर इंजरीज हैं, और या ग्रेड 4 या 5 है, उसमें तो है ही डैमेज कंट्रोल. अच्छा सर, ये स्टेपलर जो है, ये 40 मिलीमीटर का वाला, 4 सेंटीमीटर वाला, कितने उस वाला लीनियर स्टेपलर होता है ड्यूडेनम के लिए? बेसिकली तो ये जो 50 मिलीमीटर। आप उसको जो है ना, देखिए आपने तो फायर करना है ना, 60 वाला आता है जो कि बेसिकली 60 मिलीमीटर होता है, 6 सेंटीमीटर होता है, तो आपने तो देखना कितना फायर करना है ना. तो ये तो ठीक है। बेसिकली लेंथ है ना उसकी स्टेपल की, हाँ तो आपके जो भी अवेलेबल हो कर सकते हैं उससे. ठीक है। अच्छा लीनियर भाई, एक दो स्टेपल. चीजें अगर आप इजाजत हाँ दें तो मैं कह बिल्कुल बिल्कुल, जी हम आपकी इंतजार देखें, कर. वो आपने बिल्कुल ठीक कहा
कि जब ट्रॉमा के साथ उसका सिनेरियो आ रहा है और ग्रेड 3 आपने बता दिया, तो फिर तो सवाल ही कोई नहीं है कि रिकंस्ट्रक्शन करें या रिपेयर करें। आपने कंट्रोल फिस्टुला बनाना है, उसकी मोडालिटीज डिफरेंट है, लेकिन आपने वर्ड वाइवे के हिसाब से कंट्रोल फिस्टुला बोलना है। उसके बाद आप बता दें कि हाँ मैं इसको स्टेपल करूंगा, क्लोज करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो आपने बाद में बताना है, लेकिन आपने वर्ड कंट्रोल फिस्टुला बोलना है वाइवे के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि वो ये कुछ लफ्ज सुनना चाहते हैं और उसके अंदर ये कंट्रोल फिस्टुला का लफ्ज है ड्यूडनल इंजरी के लिए। ठीक है, तो मैंने कहा ये मैं इसमें ये चीज ऐड कर दूं। मैंने आपका सिनेरियो एक्चुअली सुना नहीं था, मैं तो उस वक्त ऐड हुआ जब आप उसीले कार्डियो और एओर्टा की बात कर रहे थे, तो मुझे पता नहीं था कि क्या बात चल रही है, लेकिन अब पता चला है। तो ड्यूडनल इंजरी, ट्रॉमा, गन शॉट, वट जो भी है, और ग्रेड 3 अब आपने बता दिया, मोर देन 50% डैमेज है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कंट्रोल फिस्टुला। उसकी मोडालिटीज हैं जिस तरह आपने बता दिया, ऊपर एनजी, नीचे साथ आप निकाल दें, नीचे बंद कर दें, ऊपर बंद कर दें, पेनक्रियाज वाले को क्लोज कर दें, तो वो सारी इसकी फर्दर आगे चीजें हैं, डिटेल्स हैं। लेकिन जो पहली चीज बोलनी है वो यही है कि सर इसको मैं रिपेयर नहीं करूंगा, मैं इसको कंट्रोल फिस्टुला बनाऊंगा। एक अटेम्प्ट इसमें रिपेयर की नहीं देंगे, मतलब अगर सर मान डैमेज ले, कंट्रोल में तो नहीं करेंगे ना सर? नहीं अगर प्राइमरी रिपेयर हो सकती है अगर तो। जो डैमेज कंट्रोल में भी है ना, अभी डैमेज कंट्रोल भी रिसेंट जो है ना इनकी वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी की गाइडलाइंस हो गई, उसके अंदर तो वो है, उसके आपको स्टेपल करनी प्राइमरी क्लोजर का है कि जितने एज मतलब जितना पॉसिबल आप प्राइमरीली क्लोज कर सके, इफ यू कैन डू इट। ये पहली रिकमेंडेशन है, इफ यू कैन डू इट। इफ यू कैन नॉट डू इट तो फिर उसमें क्या है, आप उसको टेम्परेरी तौर पे इसको क्लोज कर देते हैं, विद द हेल्प ऑफ द सूचर कर सकते हैं, और या उसके स्टेपल के साथ कर सकते हैं, ताकि मिनिमम जिसमें टाइम आपको लगे। जो दूसरी वाला था ना, ट्रिपल जो ड्रेनेज वाला था, कि आप ट्यूब ट्यूब ड्यूडेनोस्टमी कर देते थे, और ऊपर गैस्ट्रोस्टमी, फीडिंग ड्यूडेनोस्टमी, और ऊपर से टी ट्यूब भी डाल देते थे। ये पहले वाले थे ना जो प्रोसीजर्स थे ना ड्यूडेनल इंजरी नहीं, मैं कहना सर कि चाह रहा हूँ कि रिपेयर के। बनती नहीं है डैमेज कंट्रोल के अंदर। हम्म, जब आपने ग्रेड 3 कह दिया तो रिपेयर तो नहीं करेंगे ना आप? ठीक है, तो ठीक हो गया सब। तो नेक्स्ट सिनेरियो पे चलेंगे। जी सर। उमर, आप पूछिए नेक्स्ट सिनेरियो से कौन से। उमर भाई, मुझे अगर आप 1 मिनट दें तो मैं सिनेरियो पूछ लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ अपनी जगह। अच्छा, मुझसे जब हुआ था तो उन्होंने मुझसे तो एक लैब कोली के स्टेप्स पूछे थे। ठीक है, और वो उन्होंने कहा था जी आप सारे के सारे स्टेप्स जो है ना, वो आप सीक्वेंशली आप उसके सारे स्टेप्स बता दें। फिर उसके अंदर कैलस ट्रायंगल की बाउंड्रीज पूछी थी, और ये कि उसके अंदर जो है ट्रायंगल के अंदर बाहर डायसेक्शन कैसे करेंगे। तो यही हम आमिर से पूछ लेते हैं। आमिर, आप जरा लैब कोली के स्टेप्स बता दें। First of all, I would place the position in on the table with arms abducted. Then I will approach the patient with a standard four port laparoscopic cholecystectomy. My first port will be in umbilical region. That will be camera port. I will puncture the peritoneum through varus needle, and then I will put my second port in subxiphoid area, and third port in 2 centimeter on the right side below the costal margin, and fourth port in right lower quadrant. And then I will give the ask my I will do diagnostic laparoscopy first, and see whether there is any port site injury or not. I will thoroughly examine the abdomen, and then I will assess the anatomy. I will retract the liver and see gallbladder fossa. I will hold the fundus of gallbladder with the one and pull it on towards the right shoulder of the patient, and then I will hold the infundibulum and expose the calyx triangle. I will establish the critical view of safety by holding the fundus of gallbladder towards the right side of the shoulder of the patient, and infundibulum towards the left right lower area. Then I will assess the anatomy and see. I will take care of R4U line, and my dissection will continue will be above the R4U line. And then after establishing the critical view of safety, I will start dissecting near while remaining near gallbladder. I first of all remove a posterior peritoneal fold, and then dissect the anterior peritoneal fold and expose cystic duct. And I will identify all structures, that is duodenum, right hepatic artery, and cystic duct. And then I will
dissect the cystic plate, and in a proximal 1/3 of gallbladder, I will and individually I will to identify the cystic duct and cystic artery individually, and first clip the cystic artery and then cut it. Apply 2 proximal clips in the cystic artery, and then I will duct going into the gall bladder and common identify, and then I will clip cystic duct and then I will cut the cystic duct and while remaining close to the gallbladder. Then I will Okay. dissect gallbladder from gallbladder fossa and retrieve my specimen from epigastric port. Okay, could you give me the boundaries of Kellett's triangle? Kellett's triangle has 3 boundaries. One is cystic duct. Superior boundary is inferior lobe of liver, and third is common hepatic duct. दोबारा बताएं. Cystic duct on the right side, on the lateral border, common hepatic duct, and superior border is inferior surface of the liver. Okay. Okay. आपने you've done the dissection. You've removed the gallbladder. Now you see some form, small little bile coming from the clips, from near the clips. What will you do? Okay, then I will assess that. I will keep calm, and then I will put irrigation and see, wash the area first and see where is the site of leak. If it is a leak from the aberrant duct from the gallbladder, liver, gallbladder fossa, or it is a leak from the clip that I've applied. Uh, uh, and I will at the same time I will call for help from my senior surgeon, and I will try to, if there is a stump is left, and I can manage to apply the clip again in the cystic duct. If it's loose, I can reapply, or if it is a duct of Lushka that is having leak, if there is no distal obstruction, then it can stop by itself. After some time, I will put in the drain, and at the same time, I will again Okay. reassess. Okay. You're unable to find the location of the leak while doing laparoscopically. What do you do? Then I will do a on-table cholangiography. If facility is available, I will try to identify the site of leak. If it is not amenable, then I will put in the drain. And if my senior is also unable to identify the drain, then I will contact hepatobiliary surgeon. And I If he is will not available, you do not have on-table cholangiography. The hepatobiliary surgeon is not there. You're alone doing the surgery. okay, then I will put in the drain, and I will contact gastroenterologist post-operatively to I will do post-operative MRCP and see the site of leak, and I will request gastroenterologist to put in a stent across the leak. I will classify the injury according to MRCP, and if MRCP, I will grade the injury according to MRCP, and then if it is grade 1 or 2 injury, then I can just put in a stent if it's leak from cystic duct, and keep drain till the bile is reduced. And if there is a, I will see whether CBD there is no distal obstruction. If there is no distal obstruction, then I hope that it will improve. Otherwise, I will refer this patient to hepatobiliary unit for further. Will you not convert this case to open surgery to look for the site of the injury? Yes, I can open this case because I have already put in the drain. I can open him up and do thorough lavage, and I will then see to identify the site of leak. If it is a primary CBD injury, then I can put in a T tube and make a controlled fistula. I will put in the T tube and give diversion to the bile. Okay. There's injury of the CBD in the lower portion of the CBD and it's partial. What would you do? If it is partial, then I can put in a T tube, and I will give external biliary drainage.
through the T tube. Okay, that's it. Yes. Then I will I will monitor the LFTs and do T tube cholangiogram post-operatively to see whether there is any distal obstruction or not. And if it is then not, then I will keep T tube for at least 2 to 3 weeks till the track mature. And after that, I will do a T tube cholangiogram. And if there is no distal obstruction, then I can remove the T tube. And then from that area, I will can do cholecystoscopy to remove the stone distally, if there is any. Okay, that's the end of the scenario. अच्छा अपना उस्मान, दो तीन बातें हैं मेरी तरफ से। सर एक तो जब आप पोर्ट आपने पहला बताया तो आप इंफ्राम्बलाइकल आपने अपने अम्बलाइकल बोला, बेहतर है इंफ्राम्बलाइकल बोलें। और पहला पोर्ट डालते ही हमारी तो प्रैक्टिस है कि पहला पोर्ट डालते ही हम उसी वक्त असेस करते हैं कि इसको कोई पोर्ट मतलब कोई पोर्ट इंजरी तो नहीं हुई जब आप पहला पोर्ट डाल लेते हैं, क्योंकि इंजरी पहले पोर्ट नहीं करनी होती है, ठीक है, अगर करनी है। बाकी सही। शफाकत मुझे उमर भाई करेक्ट करेंगे। दूसरा, जब आप ये अपना आपने एक तो पोजीशन का शायद जिक्र नहीं किया इसकी, जो कोहली की पोजीशन आप बनाते हैं एंटी ट्वेंडलनबर्ग और राइट साइड आप, ये रिवर्स शायद आपने पेंडुलम। मेरे ख्याल में जिक्र नहीं किया इसका। ये हमेशा पोर्ट डालने के बाद बनाते हैं, जब आप पोर्ट डाल लेते हैं। सर तीसरा पोर्ट आप जो राइट लोअर एब्डोमेन कहते हैं, मेरे ख्याल में उसको राइट लंबर रीजन में रखें, क्योंकि लोअर बहुत नीचे हो जाता है। राइट ठीक, लंबर रीजन में हम भी अम्बलाइकस के लेवल पे ही डालते हैं, जो ठीक, चौथा पोर्ट डालते हैं ना सही, उसके असिस्टेंट के लिए। ठीक, अच्छा, फिर अगली बात यह कि जो आपने क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी शुरू में ही बोल दिया, क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी तो हम बाद में इस्टेब्लिश करते हैं, जब हम क्लिपिंग करने से पहले, जब हम सारी डिसेक्शन कर लेते हैं और देखते हैं कि सिर्फ दो स्ट्रक्चर्स उसके अंदर जा रहे हैं नीचे। सही, अच्छा, फिर एक और बात यह है कि जब आप पोस्टीरियर अगर आपने डिसेक्शन शुरू करनी है, तो फिर तो आप नेक को खींचेंगे आप लेफ्ट शोल्डर की तरफ। जब आपने इंटीरियर डिसेक्शन करनी है, तब आप राइट उसके एलिया क्रेस्ट की तरफ खींचते हैं उसको, मतलब करते हैं। जब आपने पोस्टीरियर करनी है, तब तो आपने उल्टा उसको खींच लेना सही, अपना टुवर्ड्स लेफ्ट शोल्डर, मेरे ख्याल में। ठीक है ना? सही, हाँ, और एक और बात यह है कि आप ये सारी चीजें आइडेंटिफाई मेरे ख्याल में तो करने की जरूरत नहीं होती। डोडनम को, हेपेटिक आर्टरी को, इवन बाइल डक्ट को भी हम खुद से नजर आ जाए तो ठीक है, वरना स्पेशली इसको फ्लोर फ्लोर के देखते नहीं है कि बाइल डक्ट किधर है। मेरा तो यही ख्याल है कि आप उससे उस एरिया से दूर ही रहते हैं ये इन चीज़ों से। और क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी आप तब एस्टेब्लिश करते हैं जब आप वही जो दोनों तरफ इंटीरियर पोस्टीरियर आप ये पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन जो है 3 to 4 सेंटीमीटर आप दोनों तरफ से जब कर लेते हैं, तो पीछे से जब उसके खाली जगह बन जाती है गॉल ब्लैडर के पोस्टीरियरली, तो फिर आप कहते हैं कि अब क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी एस्टेब्लिश हो गई है कि कोई दो स्ट्रक्चर्स के अलावा कोई स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं जा रहा। बाकी अपना जो उमर ने जो बाद में बताया कि बाइल लीक हो रहा है, तो उसमें आपने ठीक किया कि अगर मेरे ख्याल में अगर आपको मिल नहीं रहा तो आपने ड्रेन डाल के बाहर आ गया। मुझे ये नहीं समझ आई कि इसको ओपन करने की आपने क्यों वो किया कि मैं फिर इसको ओपन भी कर लूंगा। अगर क्योंकि लैब पे जो आपको एनाटॉमी नजर आती है वो ओपन पे आपको नजर नहीं आती, तो आपने अगर लैब पे आपको नहीं मिला बाई लीक, तो मेरा ख्याल है इसको आगे भेज दें। अगर पेशेंट स्टेबल है और ड्रेन आपने डाल दिया, तो इसको बजाय खुद ही ओपन करने के इसको आगे मैं खुद नहीं अब इसको छेड़ूंगा, मैं आगे भेज दूंगा इसको अगर मेरे पास नहीं है। सर वो सिनेरियो में दिया था ना कि आइडेंटिफाई हो गई है लोअर पार्शियल इंजरी है, तो क्या करेंगे आप? तो फिर वो ओपन किसने अच्छा किया? अच्छा, नहीं वैसे जनरली मैं कह रहा हूँ, अगर आप कोई एग्जामिनर कहता है कि यार आपसे लैब से नहीं हुई तो क्या आप ओपन करेंगे या नहीं, तो मेरा तो ख्याल है ओपन करने का फायदा कोई नहीं है। तेरा क्या ख्याल है? सर अगर आपको कोई और हेल्प अवेलेबल नहीं है, बेटर अवेलेबल नहीं है, पास कोई सेंटर नहीं है, तो फिर तो आप एक ओपन करने की ट्राई दे सकते हैं उसको। अच्छा, ड्यूरिंग अगर सेम इंजरी आप कह आइडेंटिफाई रहे नहीं हैं। हो रही, अगर इंजरी आइडेंटिफाई नहीं हो रही, तो अगर आपके पास कोलेंजियोग्राम भी नहीं है, फिर आप वो सिस्टोस्कोपी भी नहीं कर सकते आप, सॉरी क्या कहते हैं उसको, कोलिडो को वो नहीं कर सकते आप। तो फिर आप एक दफा ओपन करके देख लें इसमें। अच्छा लश्का वाला छोड़ गए, वो जो एक्सेसरी डॉक्टर है उसका नहीं बताया, वो पहले जिक्र जरूर किया है, लेकिन जब रीजन फाइंड करते वक्त उस वक्त नहीं बोला कि ये इंजरी इसकी भी हो सकती है। तो ये आमतौर पे उसका भी पूछते हैं, तो वो क्या करेंगे इसमें? दायरा उसमें ड्रेन ही डालना है हमने, लश्का में तो तो कुछ वो नहीं करना ना, वो तो खुद ही बंद हो जाता है, हाँ कोई खुद ही प्रॉब्लम। बंद रहता है, उसमें आप ड्रेन डाल देंगे, बाकी वो खुद ही सेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो कन्वर्जन है ना सर, लैब से ओपन में कन्वर्जन, वो उसकी इंडिकेशन है कि आपने करना है क्या है? इट्स जस्ट फॉर द डायग्नोसिस पर्पस, तो बिल्कुल 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 नहीं है कि आपने आइडेंटिफाई नहीं हो रहा
तो हम ओपन कर लें, जैसे आपने नुमान आपने कहा, तो रिकमेंडेशन यही है, आप ये क्या करेंगे, यू जस्ट पुट इन द ड्रेन और पोस्ट ऑपरेटिव फिर उसको फिर आप प्रेफर करेंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अगर आपका प्लान है कि हेपेटोबिलियरी सर्जन अवेलेबल है, यू हैव आइडेंटिफाइड यस कॉमन बाइल लिक इंजरी है और लेप्रोस्कोपी रिपेयर नहीं कर सकते, तो देन दैट इज द इंडिकेशन फॉर द आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ के आप उसको डायग्नोसिस के लिए कन्वर्जन जो ना वो अप्रोप्रिएट नहीं है कि मिल नहीं रही हो। और इसमें ये कि जो स्टेप्स है ना, जो लेप्रोस्कोपी के, जो बाकी तो सर ने बता दिए, मैं बीच में एक दो चीजें और ऐड कर देता हूँ कि जब आपने पोर्ट डाली है तो वहीं पे पेनोरामिक उसी पोर्ट से नीचे देखेंगे ना, पोर्ट साइड से नीचे, तो ब्लड तो नहीं है, और कोई 360 उसी कैमरे से देख लेंगे। प्लस जब एपिगैस्ट्रिक पोर्ट डाले तो उसमें वहां पे स्कोप को आपको शिफ्ट करें, शिफ्ट करके आप लाइकस वाले पोर्ट को देख लें कि आपके थ्रू एंड थ्रू बाउल में से तो नहीं गया हुआ कहीं। ठीक है, ये आपने कर लिया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यू नीड टू टेक अ मेंटल स्नैपशॉट। आपने पहले वेयर इज आर फॉर यू लाइन, आपने उससे देखना है कि डिफिकल्टी ऑफ द डिफिकल्टी लेवल कितना क्या है, डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं पर आप जो है कि लैब कोली कैसी हो, गॉलब्लैडर कैसा है। ठीक है, आपने देखा अम्बिलिकल फ्लेयर, अम्बिलिकल फिशर, आर फॉर यू लाइन, वेयर सिस्टिक लिम्फ नोड। ठीक है, और आपने मोटा हुआ देख लिया कि वेयर द ड्यूटेनम एंड वेयर द प्रपोज, जो उस डायसेक्ट नहीं करेंगे कॉमन बाइल को, बट लेकिन आप ये होगा कि ये है क्योंकि आपके बैक ऑफ माइंड में करोगे ये चीज, इनिशियल आपने स्नैपशॉट ले लिया, फिर आप उसी पे ही ऑपरेट कर रहे होते। देन यू स्टार्ट ऑफ योर डिसेक्शन, जो पहले पोस्टीरियर लीफ पे आएंगे और वो करेंगे, वो बाकी वो जिस तरह बता देंगे इसमें। तो मेरा अपना ख्याल था कि ये वाला जो है ना, इसमें हम्म, हम्म, हाँ उमर, नहीं नहीं, आप बात हाँ, तो ये वाला जो बाकी सिनेरियो दिया, अच्छा उसने उस्मान ने इनिशियली किया कि जी पायल आ रहा है तो मैं देखूंगा, आई वुड लाइक टू सी कि ये कहाँ से, आई विल रिमेन कीप कॉम कॉल फॉर द हेल्प, ये आपने बीच में ऐड किया। फिर आपने कहा कि ये कहाँ से आ रहा है, इज इट फ्रॉम द लिवर बेड, उसमें उसे हो सकता है, तो हो सकता है छोटा सा क्लिप आप विजिबल है, यू कैन अप्लाई द क्लिप ओवर देयर, जो डक्ट ऑफ लश्का की बात कर रहे हैं। या हो सकता है जो आपने डक्ट लगाई है वो क्लिप ही लूज हो गया हुआ है, तो आपने एक और आपने कह दिया ठीक है वहां पे लगा दिया। फिर आपके नहीं, इफ यू आर एग्जैक्ट अनएबल टू आइडेंटिफाई, जो सिनेरियो आपको दिया कि अनएबल टू आइडेंटिफाई द लीक, ठीक है, आप साथ ये देखें इस तरह एसोसिएटेड ब्लीडिंग भी है कि नहीं है, क्योंकि लेप्रोस्कोपी के अंदर जो वेस्कुलर इंजरीज भी, ये भी एसोसिएशन होती है कि अगर आपको खुदा ना खास्ता हो गई है तो साथ ये तो नहीं है कहीं, तो वो आप उसने चेक कर लिया। लेकिन इफ यू आर अनएबल, आप कोलेंजियोग्राम तो इसमें हो नहीं सकता कि आपने उसके गॉलब्लैडर तो निकाल दिया हुआ है। ठीक है, हाँ ये कर सकते हैं, क्लिप यू कैन रिमूव, अगर और करना है यू कैन रिमूव द क्लिप और उसके अंदर फिर आप डालेंगे कोलेंजियोग्राम कैथेटर, तो फिर कोलेंजियोग्राम कर सकते हैं। रिमूव द क्लिप जो आपने लगाया उसको निकालें और फिर दोबारा उसी पे क्लिप करें कोलेंजियोग्राम पे, फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ पे इंजरी अच्छा, है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये सिनेरियो है, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने उनको बताना है यहाँ से शुरू करना है। देखिए वाइवा की टेक्निक है ना, ये सारी चीजें तो सबको पता ही है, हम्म लेकिन जो वाइवा के अंदर आप बताएंगे जी सबसे पहले क्लिप देखूंगा, क्लिप तो लूज नहीं है, क्योंकि थोड़ी हम्म सी अगर वो बाइक आता है तो पहले क्लिप चेक कर लेंगे। क्लिप क्योंकि हम क्या कहते हैं कम थ्रेशोल्ड से ऊपर की तरफ जाएंगे ना, सबसे पहले देखेंगे हम्म क्लिप्स हम्म लूज तो नहीं है, ठीक है, कोई एक्सेसरी डक तो नहीं है, कोई इंजरी हम्म तो नहीं है, ठीक है, हम्म इस तरह से हम चलेंगे। अगर इंजरी है तो फिर हम सीबीडी में देखेंगे किस लेवल पे इंजरी है, फिर उसके हिसाब से मैनेज करेंगे ताकि आपको वाइवा भी सुकून हो। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वाइवे में ना जितना सवाल है उतना जवाब देना है, एक्स्ट्रा हाँ बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम्म जितना एक्स्ट्रा बताएंगे खुद फंसेंगे। बिल्कुल सही तो कहा। इसलिए वो आपने देखा सबसे पहले जी क्लिप देखा, क्लिप बिल्कुल ठीक है, वो आपको खुद बताते हैं। आप तो सबसे पहले मुझे क्लिप देखूंगा, क्लिप तो लूज नहीं है, वो कहेगा नहीं लूज नहीं है, आगे चलें। फिर आप कहेंगे अच्छा मैं देखूंगा कि कोई एक्सेसरी डक्ट तो कोई मौजूद तो नहीं है, लश्का वश्का इधर उधर, वो भी वो खुद ही कह देगा नहीं है, ठीक है। अच्छा वो अच्छा और क्या करेंगे, वो पूछेगा और क्या देखेंगे, तो आप बताएंगे मैं देखूंगा सीवीडी की इंजरीज तो नहीं है, या कोई और हेपेटिक डक्ट वगैरह की इंजरीज तो नहीं है, मैं इंजरीज को देखूंगा। जब आप ये बता देंगे तो आपको खुद ब खुद बताएगा आगे फर्दर कि ये अच्छा नहीं, वो सीबीडी भी ठीक था लेकिन फिर भी एक लीक आ रहा है, तो आप बताएंगे अच्छा एक्स क्या करूंगा आज, ठीक है। अगर वो आपको सीबीडी एक लेवल पे दिए ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने चलना उसके हिसाब से चलना है। हम उसके हिसाब से नाच रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि मेरा है कि उनके पास जो की होती है आपको बताने के बजाय जितना सवाल है उतना जवाब, एक सिस्टमेटिक तरीके से चलें कि इंजरीज अगर हो गई हैं, बाइल लीक हो रहा है तो छोटे से ऊपर की तरफ चले। पहले छोटी चीज ये है कि क्लिप लूज है, दूसरा ये कि कोई एक्सेसरी डक्ट है जिसका हमने करना कुछ नहीं है, तीसरी चीज ये कि उसने बता दिया सिर्फ किस लेवल पे इंजरी है, चौथा ये कि मिल ही नहीं रहा। तो ये तीन चार सिनेरियो बनते हैं, इसके हिसाब से आप अपने माइंड में पहले से जिस तरह लफ्ज बोला ना उसके अंदर मेंटल मैपिंग या मेंटल स्नैपशॉट, वो आप पहले ही सोच लें कि मैंने जवाब कैसे देना है, मेंटल आपके एक पिक्चर तैयार हो,
उसके हिसाब से चलेंगे। और बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जो आपने बताया है बिल्कुल ठीक बताया है। इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज इस तरह से करना है कि छोटे से ऊपर की तरफ जाएं, तो आपका वाइवा बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, वेरिस निडल यूज कर रहे हैं आजकल? जी सर, इधर तो कर रहे हैं, हमारे तो करते ही इसी वेरस नीडल से ही। नहीं, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम इधर तो वेरस नीडल से ही करते हैं। वो उसको छोड़ें, आपने कहा ना, are you हम्म, doing with the varus needle or you हाँ are जी, with the open? नहीं सर, वेरस नीडल से करता हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये हम तो पूछ वैसे क्योंकि ओपन अभी काफी जगह पे ना ओपन टेक्निक से ही होता है, तो वेरिस निडल एक किस्म की ऑब्सोलीट हो गई है। ओपन की उनको और नहीं, पर उमर ऐसे और सिनेरियो है तो टेक्निक्स हैं, ओपन से क्लोज है, हर एक के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। कोई भी एब्सोल्युटली मतलब वो नहीं है कि हैजर्ड फ्री नहीं है, कॉम्प्लिकेशन किसी से भी हो सकती है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि ये है वाइवे कि में, जिसके साथ विच वट एवर द टेक्निक जिससे आप कंफर्टेबल है। अच्छा अगर वो कहते हैं जी बेल आउट स्ट्रेटेजी होती है ना कि यू जस्ट कन्वर्ट, आपसे आगे प्रोसीड ही नहीं हो रहा, ठीक है, और आप कहते हैं नहीं मैं ओपन में कन्वर्ट करता हूँ, हम्म, तो वो किस वक्त उनको कहना है कि मैं ओपन में करूँ? अगर आपसे लेट्स सपोज डायसेक्शन ही क्लियर नहीं हो रही, देखें। वो आपसे हाँ, वो आपसे कहता है कि आपसे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं हो रहे। हम्म, देखिए, अनएबल टू प्रोसीड तो बड़ी इंडिकेशन है, बड़ी कन्वर्जन की। जी सर। अनक्लियर एनाटमी, अनएबल टू प्रोसीड, ठीक है, इनएक्सपीरियंस, वो ये सारी चीजें जो है ना, ये इंडिकेशन है कन्वर्जन की। तो अगर वो आपको इस तरह की किसी इंडिकेशन में फंसा लेता है, तो आप कर दें ओपन। आपके देखें 5 बेल आउट प्रोसीजर, ठीक है, जी सर। जिसमें एक नंबर 1 है अबाउट द प्रोसीजर, ठीक है। नंबर 2, कन्वर्ट इनटू ओपन, सब जी टोटल कोलिसिस्टेक्टमी, ट्यूब कोलिसिस्टास्टमी, सब टोटल जी। कोलिसिस्टेक्टमी, जिसमें फिर आ जी सर। जाते हैं वो फेनेस्ट्रेटिंग है और रिकंस्ट्रुएटिंग है। हाँ, और ठीक फंडस है, इट फर्स्ट डिपेंड्स। अप्रोच है। हाँ, फंडस फर्स्ट। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस, आपने पहले की हुई है कि नहीं की हुई। अगर नहीं की, मैंने नहीं की फॉर एग्जांपल, तो मैं कहूंगा नहीं, आई विल कन्वर्ट इनटू ओपन, दिस इज द बेल आउट प्रोसीजर। लेकिन अगर हम्म आपने किए हुए हैं, तो फिर आप कह सकते हैं बेल आउट आप यू कैन डू विद फंडस फर्स्ट, अगर आपने पहले किया हुआ है, यू हैव एक्सपीरियंस, तो उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। हम्म। तो बेल आउट प्रोसीजर 5 और आपके ये पास। कहने में कोई शर्म नहीं है कि हमारे, क्योंकि मेरे मेरे डिपार्टमेंट में ये है, ये मैंने ये ज्यादा किए हुए हैं तो मैं ये करूंगा, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, ये कह सकते हम्म, हैं। सही, ठीक है। उमर और कोई है तो पूछ अपने, वही उमर अपने एग्जाम वाले। जी सर, एक और भी है, वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वो तो अच्छा, जो हमसे हुए थे, जब आई डोंट नो अब क्या चल रहा है, लेकिन जो 1.5-2 साल पहले जो चल रहा था सीन, उसमें ये था कि सॉर्ट ऑफ 8 से 10 वो चीजें पूछते हैं, 10 से 12 के करीब। 6-6 होता था, लेकिन बाद में 4-8 कर दिया कि 4 लॉन्ग केसेस होते हैं और 8 शॉर्ट केसेस टाइप माहौल होता है। तो जो फर्स्ट 30 मिनट्स हैं उसके अंदर, या वो आपसे 8 पूछेगा या चाहे मतलब 4 केसेस जिस पे डिस्कशन करेंगे, और बाकी 8 केसेस या 6 केसेस वो जिसपे वो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बस आंसर मांगेगा, स्पॉट डायग्नोसिस टाइप, इस तरह की चीजें आपसे पूछेगा, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं वो। तो जिसमें लंबी डिस्कशन है ना, उसमें तो आप डिस्कशन करेंगे, लेकिन जब वो आपसे सवाल तेज पूछने के मूड में है, तो आपने तेज से जवाब देने हैं। यस और नो पूछता है वो आपसे। फॉर एग्जाम्पल, अभी वो मुझसे सवाल पूछा कि एक एक मिनट है, किधर गया? हाँ, अभी मैं आपसे पार्ट 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो पूछता हूँ आपसे कि 4.4 सेंटीमीटर डिफेक्ट इन पेशेंट विद 4 किड्स एंड डजंट वांट मोर किड्स, ठीक है ना? व्हाट वुड यू डू, लैप और ओपन? हर्निया है, 4.4 सेंटीमीटर का डिफेक्ट है वेंट्रल, और उसके 4 बच्चे हैं, डजंट वांट मोर किड्स, हाउ वुड यू प्रोसीड? I would, because defect is large, I would like to do mesh repair of this patient. Primary repair is not possible because it will become a tension. Repair will come with the tension, so I will do mesh repair of this hernia. Okay, so you'll go for mesh repair. Would you do it laparoscopically or open? I will do it open. Umbilical hernia. Yes, Why open? because I have more experience in open technique and I am comfortable with this open method. Okay. Would you use a mesh or do it a primary closure? I would do like to use the mesh because with primary closure it will be more tense and there is more chances of giving away the repair. What what sort of mesh will you use?
I would use polypropylene mesh, and I will uh, yes, I will use polypropylene mesh. What is the size of the mesh that will you Uh, use in this case? Keeping mesh in mind the size is 4.4 centimeter, defect is 4.4 meter. Yes, the principle of mesh repair is that it should be covered 5 centimeter all around. So I will use a 15 by 15 centimeter mesh to repair this defect. Okay. And where will you place the mesh? I will place the mesh in retrorectus position in sublay behind the rectus abdominis muscle. Okay, now that you say that you will use a mesh of 15 by 15 centimeter in a defect that is 4.4 centimeter, how will you create a space in the in the subrectus place? I will first of all dissect behind the rectus posterior behind the rectus muscle and in front of posterior rectus sheath, and then I will customize the mesh according to once I will close the posterior rectus sheath, then I will according to the space with the principle following 5 centimeter all around. I will customize the mesh according to that defect that is available. Okay, that is end of the scenario. Usman, the जी patient सर. defect umbilical hernia with 4.5 centimeter defect. So it's a large umbilical hernia. So recommendation is laparoscopy. क्योंकि इसमें laparoscopy जब करते हैं जो आप आगे है कि ये experience है या नहीं, that is a separate thing. ठीक है? With overlap of 5 centimeter. Laparoscopy जाएंगे तो 5 centimeter overlap, open जाएंगे 3 centimeter overlap. ओपन के साथ जो है, ठीक है. Yes. ऑब्वियसली इसमें अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं तो फिर देन इट विल बी अ 15 बाय 15 सेंटीमीटर जो डलेगी. रेट्रोरेक्टस आपने ठीक बताया कि प्री पेरिटोनियल या रेट्रोरेक्टस जो स्पेस में डालेंगे. लेकिन अगर पूछें कि बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो उस हिसाब से जो है ना 4.5 सेंटीमीटर के ऊपर जो है ना ये लैप्रोस्कोपी केस रिकमेंडेड. जी सर, लेकिन मैं अब इसलिए नहीं बोला, मैं बोल सकता था बड़े आराम से कि मैं नहीं, लेप्रोस्कोप. वो फिर हो गया ऑफर. फिर हो गया आप क्या करेंगे. जब ये पूछे आप क्या करेंगे तो आप क्या करें, फिर कहेंगे आई एम मोर कंफर्टेबल विद ओपन. अच्छा, अदरवाइज अगर अब यही पेशेंट अगर मैं कह देता हूँ पेशेंट कि की ना. विशेस, अगर कौन सा पेशेंट की विश शेयर डिसीजन मेकिंग हो, शेयर डिसीजन मेकिंग होगी ना. ठीक है. ठीक है, अच्छा, ये भी कह सकते हैं कि वो कह, अच्छा वो कहते हैं, मैं कहता हूँ जी लेप्रोस्कोपिक लेकिन हाँ रिपेयर इज द आइडियल ऑप्शन. ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर सकता लेप्रोस्कोपिक रिपेयर जो है ना इसकी तो हर्निया की. हाँ रेफर कर दे उसको, वो कहते हैं कि अपने कुलीग को. हाँ बिल्कुल, मैं तो अगर मुझे पूछेगा बिकॉज आई अगर इस तरह का पेशेंट अगर कहता है कि जी वो पेशेंट की भी डिमांड है कि जी लैप्रोस्कोपी करवानी है. आज का होता है कि लैप्रोस्कोपी के अपने उसके अपने रिस्क है. इफ यू आर पुटिंग मैश इंट्रापेरिटोनियल उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस है, तो आपने जी काउंसलिंग तो सर. करनी है ना. आई विल ऑफर द 2 ऑप्शंस, लैप्रोस्कोपी और उसके प्रोज एंड कॉन्स. तो पेशेंट एट टाइम कहता नहीं कि मैंने ओपन करवानी है. ठीक है ना, तो ओपन अच्छा, करने यूं देखो भी हम आप. कह सकते हैं कि वी विल डिस्कस विद द पेशेंट टू ऑप्शंस. यस यस. लेकिन अगर बोथ नहीं, अभी सवाल ये था विच इज सवाल ये था कि बेस्ट बेस्ट अप्रोच क्या है इसमें. बेस्ट अप्रोच अगर रिकमेंडेशन के पॉइंट ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो बेस्ट इज द लैप्रोस्कोपी. ठीक है. ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली फिर उसके बाद आगे कि जी आप आपसे आगे होता है कि आप क्या करेंगे. तो फिर अगर पेशेंट से काउंसिल करेंगे सारा, अगर पेशेंट फिर इंसिस्ट करे मैंने लैप्रोस्कोपी करानी है, देन आई डोंट हैव द सफिशिएंट एक्सपीरियंस, so I will consult my the colleague who is doing the advanced these kind of the surgery. क्योंकि मेरा अगर आप काफी उम्र लेप्रोस्कोपी से पूछते, अगर आप बोलते हैं वो आपको लेप्रोस्कोपी फंसा भी सकते हैं, आप रूटीन में नहीं कर रहे अगर. नहीं, तो वो नहीं ना बोलना. देखिए ये नहीं बोलना कि मैं कर लैप्रोस्कोपी करूं, जो आप करते नहीं है वो नहीं बोलना आपने. जो सॉरी नहीं कर रहे उसको नहीं सर कह उमर, देना कि इसके हमें बारे में ये जवाब कैसे देना है? सर उमर, आप गाइड करेंगे इसके बारे में, अब क्या जवाब देना है? आपने बताना वो है, आपने बता मैं आपको बता देता हूँ. आपने बताना वो है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि मैं लेप्रोस्कोपिक करूंगा तो आपका लेप्रोस्कोपिक पे वाइवा चलेगा, टैप पे हाँ चलेगा, साइज बिल्कुल. चलेगा, ठीक है, पोर्ट्स पे चलेगा, किधर किधर पोर्ट्स डालनी है और ये खाते, क्योंकि एम्ब्लाइकल का तो है, एम्ब्लाइकल तो आप यूज ही नहीं कर सकते. ठीक है ना, तो उसकी पोर्ट्स पूछेगा आपसे. अच्छा, फिर उसके अंदर आप उसको किस इंट्रापेरिटोनियल तो आप रख ही नहीं सकते, आपने उसको
टेक्निक्स हैं, ऑनले, इनले, ओवरले, इस तरह की चीजें आपसे वो पूछेगा। ठीक है, आप जिस चीज में कंफर्ट बेस्ट पूछते हैं तो आप उसको बेस्ट ये कहें जी बिल्कुल लेप्रोस्कोपिक बेस्ट है, लेकिन हम मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इसके अंदर, जहाँ पे हम काम करते रहे हैं वहां पे उसका एक्सपीरियंस नहीं है। हमने हर्निया अगर नहीं किया हुआ तो ये बोले तो आप सर आवाज कट रही है आपकी, थोड़ी सी आवाज क्रैक कर रही। अभी आ रही है मेरी आवाज? जी सर, अब बेहतर, आप ठीक आ रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ना उसके अंदर ये है कि जिसमें आप कंफर्टेबल है ना आपने वो बताना है जिसका आपको एक्सपीरियंस है। अगर आपको लैप हर्निया अम्बिलिकल हर्निया का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वो मत बताएं, आप उसको वही कहें ना, मैं ओपन करूंगा। हाँ वही ना, क्योंकि अब आप उसको लैब हर्निया का बता दें और उसके बाद फिर वो आपको फंसा ले, अच्छा जी किधर से करेंगे, कैसे करेंगे। और नहीं, क्योंकि अगला वाइवा चलना है इस पे ना कि आप इसकी, जैसे मैंने उसको कहा जी मैं इसको लेप्रोस्कोपिक आइडियल है, लेकिन मैं चूंकि एक्सपीरियंस नहीं मेरा इसके ऊपर, जिस सेंटर में हम कहते रहे हम इसको इंग्वायरल हर्निया हमने रेगुलर बेसिस पे किए हैं, लेकिन हमने ये वेंट्रल हर्निया जो है उसकी मेरा एक्सपीरियंस कम है। तो उसने कहा अच्छा तुम क्या करोगे, मैंने कहा ओपन करूंगा। उसने कहा अच्छा ओपन में क्या करेंगे, ओपन के अंदर फिर से मुझसे ना जो प्लेसमेंट ऑफ जो वो है मैश उस पे वाइवा हुआ। जब जी आप सर। उसको बताएंगे कि मैं लेप्रोस्कोपी करूंगा तो टैप टैप प्लेसमेंट ऑफ मैश साइज ये वो इस तरह की सारी चीजें पोर्ट साइड की सारी आपसे पूछेगा फिर वो। तो अगर आप या तो तैयारी करके जाएंगे या फिर उसको बता दें कि नहीं मैं ओपन करूंगा। ये आंसर है ना। अच्छा एक ठीक है, बात बताएं यार, आपने बेस्ट बेस्ट एक बात, ऑप्शन इज द लैप्रोस्कोपी ना। हाँ हाँ, बोला मैंने यही था कि अब हाँ, आजकल जो तो स्टैंडर्ड इसीलिए है वो देखो, तो यही मैं भी अब कह ऑप्शंस रहा हूँ है कि जो वो बेस्ट। हाँ लेप्रोस्कोपिक है, हाँ, ग्रुप लेकिन करते हैं ये उसको, मेरा उसको हम ये एक्सपीरियंस नहीं बताएंगे है। तब। द बेस्ट अप्रोच इज लेप्रोस्कोपी फॉर दिस पेशेंट, बट आई विल डू हाँ, ओपन रिपेयर। because it's more than 4 centimeter. So less यस। than 1 centimeter is a primary repair. सूचर के साथ बात अभी तो कहते हैं मैश डालनी चाहिए। 1 to 4 centimeter मीडियम डिफेक्ट है, उसमें यू कैन डू ओपन एंड यू कैन डू लेप्रोस्कोपी। दोनों में कोई भी कर सकते हैं। ये जो हर्निया एसोसिएशन की गाइडलाइन यूरोपियन हर्निया की दूसरे वाली ने उनकी है, मोर देन 4 centimeter लेप्रोस्कोपी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही सर अच्छा एक बात लेप्रोस्कोपी तो, बताया यार अपना शवाकत या उमर, सर ये जो हम रिट्रोरेक्टस जब मैश रखते हैं ना तो ये 15 by 15 की जगह बनाना तो इम्पॉसिबल होता है यार प्रैक्टिकली। इसीलिए 3 centimeter का सर, आसान है ओवरलैप 3 centimeter है, मैंने इसलिए सवाल पूछा नॉट था कि फाइव भाई आप सेंटीमीटर उसके रेक्टस के पीछे आप 15 सेंटीमीटर कैसे बनाएंगे। हाँ, प्रैक्टिकली तो आप मुश्किल से 6 by 11 की फिट करते हैं उसके अंदर, ये इवन 4 सेंटीमीटर के डिफेक्ट में भी। रिकमेंडेड सर है 3 centimeter ओवरलैप है, इसी वजह से क्योंकि डिसेक्शन पर आपको काफी करनी पड़ती है ना। नहीं तो फिर अच्छा क्या यूं इसमें थोड़े दिक्कत करे, है? करे सॉरी, क्यों सारे। आप ये भी तो जवाब दे सकते हैं मैं ऑनलाइन रख तो दूंगा। बताएं, आइडियल नहीं ऑनलाइन है, बताएं, कोई मसला नहीं है, ऑनलाइन बताएं। लेकिन वो नहीं सर आइडियल नहीं आइडियल है। तो, वो आइडियल तो नहीं है, लेकिन अगर आप रखते हैं तो गलत काम तो नहीं, ऑनलाइन भी एक ऑप्शन। नहीं, ऑनले ऑनले टेक्निक अभी ऑनले भी है, ठीक है, मैं लेकिन आपसे ये उसकी कह रहा अपनी। हूँ कि जो आप करते हैं कि बेस्ट ये है, लेकिन मैं ये करता हूँ क्योंकि हमने ये किया हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस इसमें ज्यादा है, या फलां में हाँ, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि आप ये देखें ना कि मेजोरिटी तो सारे लोग ऑनलाइन लगाते हैं इन तो उसको रेट्रो छोड़ रेक्टस। दें, उसको देखो फिर बार बार उम्र यही बता रहे हैं यार कि हम्म आपने बताना कि यार ये बेस्ट ये है, लेकिन हम्म। मेरा एक्सपीरियंस इसमें है, अब इसमें मतलब उसको छोड़ दें कि लोग क्या करते हैं। आप अपना बताएं, अगर ऑनले कर रहे हैं तो बताएं बेस्ट इज द रेट्रोरेक्टस या प्री पेरिटोनियल, बट मेरा एक्सपीरियंस इसमें ऑनले में ज्यादा, आई विल पुट इन द ऑन। देखिए पॉइंट ये है कि आपने शो करना है कि आप सेफ सर्जन है। हाँ, ठीक है, आप सेफ किस में है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है। जिसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं है आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे पेशेंट्स के ऊपर, तो सेफ्टी इसी तरह से आती है। ठीक है, जी सर। अच्छा अब अगला सिनेरियो, ठीक है चलें आगे। ये भी शॉर्ट टर्म वाला है, मतलब जो जी सर। क्विक आंसर वाला है कि 35 years old with severe right upper quadrant pain, TLC is high, there is yellow discoloration of eyes, bile is 80, direct is 60, ALP alkaline phosphate is also raised, ALT is 90.
Ultrasound of the CBD shows 0.9 centimeter size of the CBD, but no visualized stones. One investigation. What investigation will you do? If you have to do one investigation, what investigation will you do? MRCP. Why MRCP? Why not ERCP? Because MRCP is non-invasive and it will delineate the anatomy, and it is non-invasive, and there is no chance of pancreatitis, because ERCP has a chance, a reason 4% incidence of pancreatitis. So it will have the same sensitivity as ERCP to delineate the any obstruction and delineate the anatomy of hepatobiliary drainage system. Okay. On MRCP you find 2 stones in CBD. Now what? And then I will request gastroenterologist to do ERCP and sphincterotomy and retrieval of stones and placement of stent to give biliary drainage. Okay, stenting was done. Patient got better. What next? Then patient, because patient has gallstones, after then the cholecystectomy has to be done laparoscopically. Okay. Will you do a lap chole or open chole? I would like to do laparoscopic cholecystectomy. In the same admission or after some time? After some time, because I would like to get his LFTs near baseline, and because emergency is over and biliary drainage is adequate, so after inflammation settles and LFTs become normal after after 4 weeks, I will get fresh LFTs, because the complication rate with the raised LFTs is more as compared to normal LFTs. So after 4 to 6 weeks, I will do laparoscopic cholecystectomy. Chalo, this scenario ended now, Sir Noman. अच्छा अपना बाकी तो ठीक है, ये बता कि व्हाई नॉट इन द सेम एडमिशन, जब हम आप उसको अपना उसने डाल दिया तो आप उसको थोड़ा स्टेबलाइज होने दें, उसके एलएफटीज डाउन हो जाएं। सर तो LFTs डाउन होने में तकरीबन जॉन्डस, इसको सीवियर जॉन्डस है, और जो है वो 2 हफ्ते तो मेरे ख्याल है दो लग जाते हैं। हेमोग्लोबिन कितना था? 80। बताया था 80 माइक्रोमोल। जी सर। माइक्रोमोल इतना बहुत ज्यादा 80. 80 माइक्रोमोल। ओके, ठीक है। तो देखें, मेरे ख्याल हाँ देखें, आपने ईआरसीपी स्फिंक्टरोटमी होगी ना, अगर इसको लेट रखेंगे रिकरेंट इसके ऊपर से स्टोन स्लिप करके फिर नीचे जा सकता है। लेकिन इसका जो ईआरसीपी जब हो जाए ना, वैसे ईआरसीपी अपने करा ली है, स्टोन दे हैव रिमूव्ड, तो उसके एटलीस्ट 48 आवर के बाद यू कैन डू द कोलिसिस्टेक्टमी। ईआरसीपी का जब आपने कर ली तो बाद में कब जी. आप कराएंगे? तो इसका जवाब हाँ, ये इस दे पे दें, फिर इसमें अर्ली। आप इस पे अपने मेरी जॉन्डिस इसके कहेंगे, साथ जॉन्डिस को हो डिस्कशन जाता ये है। हो गई थी. हाँ, इस पे मेरी इसके साथ डिस्कशन हो गई थी. उसका यही उसने ये पूछा था कि आप कब करेंगे, तो मैंने उसको यही जवाब दिया था जो आपने ये दिया कि डिपेंड करता है कि पेशेंट सर आवाज नहीं प्रेजेंट कब सर किया. अगर तो वो आवाज विद इन नहीं आ 7 रही। डेज उसके सारी कुछ करने के फिर तो मैं करूंगा उसको. मैंने इसको देखे जो मेरा इसके साथ डिस्कशन हुई थी ना, उसमें मैंने, अब आ रही है आवाज मेरी? जी सर अब आ रही है। देख, जो मेरी इसके साथ डिस्कशन हुई थी ड्यूरिंग एग्जाम ही, तो उसके साथ यही हुई थी कि वो जो हमारा सिनेरियो जो हमने याद किया होता है ना कि विद इन 7 डेज आ गया तो हम कर देंगे, उसके बाद ना आया तो हम इंटरवल पे जाएंगे. तो मैंने उसके साथ उस पे ले गया था कि अगर तो उसने विद इन 7 डेज प्रेजेंट कर दिया है, इमरजेंसी ओवर होगी है और अभी 7 दिन के अंदर अंदर ही मौजूद है, तो हम उसको कर देंगे, ठीक है. लेकिन अगर टाइम ज्यादा हो गया, 10-12 दिन गुजर चुके हैं, इनिशियल पेन स्टार्ट हुए हुए, तो हम उसको इंटरवल कर लेंगे, जिसको उसने एक्सेप्ट कर लिया. लेकिन जो शफाकत बता रहे हो बिल्कुल ठीक है कि अगर आपने इसको रिलीव कर दिया है तो विद इन 48 आवर्स वो पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है. आप उसको हैवी एंटीबायोटिक्स देते हैं और आप उसकी क्योंकि इसमें पैनक्रेटाइटिस डेवलप नहीं हुआ हुआ. बिल्कुल। और ये 48 आवर का टाइम दिया हुआ इसलिए होता है कि जो ईआरसीपी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन वो आपकी पता चल जाएंगे कि पैंक्रेटाइटिस पेशेंट को डेवलप किया, कंड्यूमरल इंजरी हो. एग्जैक्टली. वो टाइम जब गुजर जाता है देन फिर आपने बाकी फैक्टर को देखना है कि पेशेंट की कंडीशन ठीक है, बाकी सारे पैरामीटर ठीक है, देन
यू कैन, लेकिन 48 आवर्स से पहले नहीं करना। बिल्कुल, क्योंकि कोई मिस स्टोन्स है ईआरसीपी में हाँ। आप निकाल नहीं सके उसको, या दोबारा जॉन्डिस कंटिन्यू करता है, परसिस्ट करता है, उसका ठीक नहीं होता, पेनकिटाइटिस डेवलप होता है, या उसकी जो इन्फेक्शन है वो चलती रहती है, तो या उसका फीवर सेटल नहीं होता, तो फिर तो आप नहीं करेंगे ना। 48 आवर्स के बाद अगर पेशेंट बेहतर हो जाता है तो फिर आप कर सकते हैं। ये नॉर्मली एलएफटी कितने दिन में बेहतर हो जाते हैं? यार ये वाला तो 10 ही ठीक होगा ना, ये तो ब्लॉकेट आपने खत्म कर दी तो एलएफटी बेहतर हो जाएगा उसका फौरन ही। सही है। तो अभी इसका क्या जवाब दे दें कि उसी रेडिएशन में कर दें 48 घंटे में? आप उसको ये बताएं कि मैं वेट करूंगा, मैं उसको देखूंगा, उसके पेशेंट के बेहतर होने का इंतजार करूंगा, और उसके बाद डिसाइड करेंगे। आफ्टर 48 आवर्स हम उसको रिव्यू करेंगे और डिसाइड करेंगे। दूसरा डिस्कशन को मैं दूसरी तरफ ले गया था कि अर्जेंट, अर्ली और इंटरवल वाली जो होती है, उस तरफ जी मैं सर। ले गया था डिस्कशन को, तो उसने उसको मान लिया कि ठीक है, अगर वो 7 दिन बाद आ रहा है वैसे ही ठीक है, 10 दिन हम्म। हो गए तो फिर, अब ये 12 दिन हो गए तो फिर तो आपने नहीं करनी ना, फिर तो आपने इंटरवल ही करनी है। ठीक हम्म। है, पेशेंट भी बेहतर हो गए, तो हम्म। उस तरफ आप ले जाएं। आप शफाकत से पूछते हैं, शफाकत बताएगा इसका जवाब। बिल्कुल, ये सही सही बस ये हर सही। पेशेंट का डिफरेंट है ना, पेशेंट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा मेरे ख्याल में। वही ना, मतलब इसमें ये रखना अपने 48 आवर से पहले नहीं करनी, ये कैश पॉइंट है बस। अब आफ्टर 48 आवर इट डिपेंड्स अपॉन अपने कितनी ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स, कितनी उसकी क्यूकोलिसिस्टाइटिस है, तो वही बात जिसने उमर ने भी बताई है, वो देखेंगे, पेशेंट कंडीशन देखेंगे, बाकी उसकी कोमॉर्बिडिटीज को देखेंगे। ठीक है, लेकिन 48 आवर से पहले नहीं करनी भाई, ये इसके अंदर है। हम्म। और अगर इसमें पैंक्रेट दूसरी चीज ये है कि जो एग्जामिनर है ना, वो खुद बताएगा कि नहीं 48, आपने इसका जी मैं 48 आवर्स के बाद उसको रिव्यू करूंगा, उसकी कंडीशन को, कि वो बेहतर हो गया कि नहीं हो गया, उसकी हम हाँ सर्जरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एग्जामिनर आपको क्या, नहीं नहीं, वो बिल्कुल सेट हो गया, उसका जॉन्डिस भी सेटल हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ। आप कुछ एग्जामिनर को भी बोलने दें। दूसरा ये कि अगर वो कहता नहीं उसकी कंडीशन वैसी है, फीवर भी कंटिन्यू कर रहा है, या उसका पेनकिटाइटिस भी हमें नजर आ रहा है, माइलेज थोड़ा सा अभी तो सेटल नहीं हुआ पूरी तरह, लाइपेज थोड़ा रेज्ड है, तो फिर आप कहें नहीं मैं इसको फर्दर वेट करूंगा और मैं इसको इंटरवल कर दूंगा जब तक ये ठीक नहीं होता, उसके बाद हम दोबारा डिसाइड करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, वो ये भी पूछ सकता है कि स्टोन और स्लिप करके निकल गया तो फिर? देखिए वो सिनेरियो ऐड कर सकते हैं ना। एक सिनेरियो ये हम्म। हो सकता है कि आपने ईआरसीपी करके 48 आवर्स के बाद देखा तो हम्म। उसकी जॉन्डस पूरी तरह सेटल ही नहीं हुआ, दैट मीन्स कि कोई स्टोन मिस हो गया या हम्म। कोई नया स्लिप के आ गया, तो फिर आप एक दोबारा रिपीट करेंगे एमआरसीपी अगर सेटल नहीं हो रहा तो। ठीक है। और अगर वो कहते हैं जी डेटोरेट करता जा रहा है मरीज, फीवर शुरू हो गया है, एम्पाइमा बन गया है, और फिर इमरजेंसी कोलिस्टेक्टमी तो किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोलेंजाइटिस हो गया उसको? देखो ईआरसीपी तो हो गई ना, उसकी स्टेंटिंग भी हो गई है। आप उसका ऑब्स्ट्रक्शन उसकी रिलीव हो गई है, आप कोलेंजाइटिस का तो मतलब वो नहीं है, कोलेंजाइटिस जो होगा वो भी ठीक हो जाएगा ना। या एक सिनेरियो ये दे दे कि पोस्ट ईआरसीपी पैंक्रेटाइटिस हो गया उसको? ये हाँ, ये सिनेरियो वो पोस्ट जो हो सकता है ना, वो आपको क्या मिल सकता है कि हम्म। आपने जैसा 6 वीक का कहा था ना, 6 वीक बाद करूंगा मैं, अगर मुझे, मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं आपसे ये कहूंगा कि 6 वीक का आपने कहा ना, 6 वीक के बाद देखेंगे, तो मैं कहूंगा आफ्टर 3 वीक पेशेंट हैज रिपोर्टेड बैक अगेन टू यू विद द जॉन्डिस। तो वही हम्म। बात है, जो स्टोन नीचे स्लिप करके चला गया, क्योंकि ये हो सकता है। हाँ, आल्दो स्फिंक्ट्रोटमी हुई तो छोटे स्टोन जो वो पास पास कर जाएंगे। जो बड़ा कोई स्टोन होगा वो तो हम्म। अनलाइकली कि बड़ा स्टोन तो नीचे आ नहीं सकता, छोटे स्टोन होगा, स्फिंक्ट्रोटमी हुई हुई है, वो गुजरते जाएंगे। लेकिन पेंकाटाइटिस वो कर सकते हैं अगर कोई इंपैक्ट किया थोड़ी देर के लिए। अच्छा, शॉर्ट सिनेरियोज में इतना आगे जाएंगे हाँ, नहीं, मोटे इतना मोटे जाए में वो, सवाल हाँ पूछना होता है ठीक है। कि क्या कर दिया, अच्छा ये कर दिया, पहले एमआरसीपी की फिर ईआरसीपी की, उसके बाद सर्जरी कब करनी है, ये इनके 3 चीजें हैं हम्म। मेन। हम्म। शॉर्ट में उस हम्म। तरह से पूछेंगे, लॉन्ग के अंदर आप डिस्कशन अच्छा। कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में बस यही अच्छा। चल रहा अच्छा उमर, इसमें जो जो है ना जो सेजेस की है ना क्लासिफिकेशन उसकी, जब भी पेशेंट क्यू कोलिसिस्टाइटिस का आता है तो आप उसको रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं काउंट बाइल्ड स्टोन की, जिसमें लो, मॉडरेट और हाई रिस्क है। जिसमें पैरामीटर क्या देखते हैं उसके पेशेंट के, हिस्ट्री ऑफ कोलेंजाइटिस, पैंक्रेटाइटिस, जॉन्डिस एक्नी बिलो वन मोर देन 1.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और अल्ट्रासाउंड के ऊपर सीबीडी साइज 6 मिलीमीटर है या 6 to 10 है या मोर देन 10 है, या विजुअलाइज टोन्स है। अब ये वाला जो सिनेरियो आ रहा है ना कि 2 फैक्टर्स अगर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो वो हाई में चला जाता है। तो हाई का कहते हैं, वो तो डायरेक्ट कहते हैं जी ईआरसीपी, जो उसकी रिकमेंडेशन है कि डायरेक्ट वो ईआरसीपी हाई जिसकी सस्पेंशन है, तो उसमें 80 अप टू 80% कहते हैं चांस होता है कि ये स्टोन इसके अंदर है। तो वो अच्छा। जो, मैंने ना हम्म, इसका हम्म, इसका जब मेरे से हाँ, सिनेरियो चला था, उसने 0.9 सेंटीमीटर का साइज दिया हुआ है, लेकिन उससे कोलेंजाइटिस भी शो किया हुआ है और स्टोन उसने नहीं बताए हुए। ठीक हम्म, है, मैंने इसको जो ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, मैंने इसको ये कहा था कि मैं इसकी ईआरसीपी करूंगा। उसे क्यों करोगे?
मैंने कहा वो एक ही काम में दोनों चीजें हो जाती हैं, तो उसने कहा नहीं आप लेस इन्वेसिव की तरफ पहले जाएंगे तो क्या करेंगे, मैंने कहा ज़्यादा फिर एमआरसीपी करें, ठीक है। हम्म। तो ये इस तरह से था। और एमआरसीपी की ऑप्शन मैंने उसको दी, लेकिन मैंने उसको कहा जी मैं हमारे सिनेरियो में एमआरसीपी करो उसके बाद ईआरसीपी करो तो बेहतर है कि पहले ईआरसीपी करके ही कर दो, लेकिन उसने कहा था कि नहीं हम यहाँ पे पहले लेस इन्वेसिव फॉलो करते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो आपने एमआरसीपी ही बोलना है पहले, बिल्कुल सही होगा। केस जो मर्जी। हाँ वो तो रिकमेंडेशन जो भी होती है ना, वो होती है कि आपने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करना होता है। तो बेस्ट जो है ना, सेफ अगर रहें तो एमआरसीपी फॉलोड बाय ईआरसीपी। इवन आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि जी हाई सस्पिशन है, अनलेस के स्टोन दे विजुअलाइज्ड है, अल्ट्रासाउंड पे आ गए हैं, तो फिर तो बनता है सीधा, फिर तो ईआरसीपी बनती है कि अगर आप अल्ट्रासाउंड पे पिक कर लिए कि सीबीडी के अंदर स्टोन है, ठीक है। तो अगर स्टोन्स विजुअलाइज नहीं हो तो फिर बेस्ट यही है कि एमआरसीपी है हाँ ना। एग्जैक्टली। चलिए अगला सिनेरियो आ गया। हाँ ये जी। भी शॉर्ट सिनेरियो है। 65 years old female has sorry 65 years old male has small gut tumor. Resection anastomosis was done. After 12 hours, you are called that the patient has tachycardia. The heart rate is 137 per minute. You cannot contact the primary surgeon. What will you do? I will resuscitate the patient. I will give IV fluids and I will see what is the cause of his tachycardia, what is the blood pressure of the patient, and I will do the ultrasound of the abdomen to see whether there is any intraperitoneal collection or not. And patient might have any reactionary hemorrhage intraoperatively, postoperatively. And what was the tumor resection of the tumor? What was the tumor resected? The drains are clean. There's nothing in the drain. Okay, then patient might have, is there any nausea, vomiting, or No, just, otherwise the patient is fine, but still he has tachycardia and heart rate of 137 per minute. then I will examine his abdomen, whether it is distended or not. And The if abdomen is not distended. okay, then patient might have stress response, and there can be bleeding, there can be there can be uh, pulmonary embolism post-operatively. And patient, what is the saturation of the patient? 98%. Okay, then I will monitor his urine output and see blood pressure is normal. Yes, blood pressure is fine. Then he can have tachycardia because of pain, or he can have bleed, or he can have uh, mesenteric torsion. Uh, these are my working diagnosis. What will you do? I will do contrast enhanced CT scan to see whether there is any leak or not, any signs of distended gut loops, or there is any 12 intraperitoneal. after 12 hours after surgery. Yes. Just 12 hours after surgery, you will go for CT scan, contrast enhanced. To see the intraperitoneal collection, or is there any bleed from the uh, um, to see in the intraperitoneal collection after ultrasound Okay, is normal. that is the end of the scenario. Drains empty है भाई. हाँ brain that आप इसमें भी स्टार्ट में उस्मान जैसे ना उससे पूछें कि पेशेंट को जाऊंगा, आई विल असेस द पेशेंट कंडीशन, आई विल टॉक टू द पेशेंट हिस्ट्री, इज इट इन पेन, पेशेंट इज कॉन्शियस, हाँ, Hmm. इज इट कंप्लेनिंग ऑफ वूंड पेन, abdominal पेन, ये पहले उससे पूछ लें कि ये पेशेंट को पेन तो नहीं हो रही, स्टार्ट में पूछ लें। देखिए मैंने क्लियर कर दिया है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं है, ठीक है। हाँ मैंने क्लियर कर दिया कि इसको कोई ब्लीड नहीं है, मैंने बता दिया इसका बीपी ठीक है, ड्रेन्स खाली है, एब्डोमेन सॉफ्ट है। अल्ट्रासाउंड भी ठीक Hmm. दे क्या रह दिया गया? उसने, बीपी भी ठीक है, तो और 12 घंटे हुए ना। तो 12 अब फोर्थ पीछे लाइन घंटे की तो रह वो गई? आपने पूछा भी है कि पेन की वजह से हो सकता है, एग्जामिनर से पूछ लें कि जी इज इन पेन, कितनी पेन है उसको, सेवेरिटी कितनी है, तो वो खुद ही Hmm. बताएगा ही कंप्लेनिंग ऑफ सीवियर वूंड पेन, वूंड पेन, ही इज कंप्लेनिंग ऑफ वूंड पेन, तो फिर तो 12 घंटे बाद जो मेन कॉज है वो इम्प्रॉपर एनाल्जेसिया है, आप उसका एनाल्जेसिया एनहांस करते पेशेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड कि हमने सारा का सारा ब्लीडिंग को हमने साइड पे कर दिया, हमने उसकी रेस्पिरेटरी इश्यूज को साइड पे कर दिया,
कि वो कुछ नहीं है, सैचुरेशन भी ठीक है, एब्डोमेन भी सॉफ्ट है, ड्रेन में भी कुछ नहीं आ रहा, तो फिर हमने सबसे पहले पेन मैनेजमेंट करनी है। उसके बाद अगर ये चीजें हैं भी, तब भी आपने पेन मैनेजमेंट पहले करनी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ये हो गया। एक और सिनेरियो छोटा सा मुझे नजर आ रहा है, ये भी छोटा ही था, एक मिनट। हाँ, 24 years old young man with no other significant history presented first time with painful swelling around anal canal. What will you do? I will take history of whether pain is associated with defecation or not, or it is always without any very stimulus. Any history of trauma, any history of chronic No history of trauma. any history of inflammatory bowel disease, fissure, hard stools, bleeding for rectum, and No then history of bleeding per rectum. No history of anal fissure. okay, then any history of hard stools, bleed. Off and on. Okay, then I will examine the perineal area of the patient to see whether there is any fissure, hemorrhoid, thrombosed hemorrhoids, or On examination, there is a 3 by 4 centimeter swelling. 3 by 4 centimeters. You are not audible, sir. And red. 4 centimeters. On examination, there is 3 by 4 swelling, 4 swelling, which is tender, red in color, and 4 centimeters. Sir, you are not audible. 3 swellings. अच्छा, अभी आवाज आ रही है मेरी? सर अभी अभी बोले। मेरी आवाज अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है सर। अच्छा, on examination there is 3 by 4 centimeter, which is red in color, tender, and 4 centimeters away from the anal verge. Okay, it means that he has a ischiorectal abscess, perineal abscess, and What my will you do? I will admit the patient, give him analgesics, give him antibiotics, and then I will do the MRI to see the classify the abscess, whether it is a ischiorectal submucosal or intersphincteric supralevator, and then I will admit and for incision and drainage, I will drain the abscess, and I will give antibiotics, painkillers, and drain the abscess. NPO करेंगे? Sorry, आवाज। Okay. Now, the patient give the incident rate for 3 weeks. सर आवाज बिल्कुल कट रही है आपकी। Can you hear me? No sir, you are not audible. Wise. अच्छा, मुझे अब बताया, अब आ रही है मेरी बात? अब आ रही है, अब आ रही है। मुझे ये बताएं कि आपने इसको, पेशेंट था, आपने इसकी सर्जरी कर दी, इंसिडेंट ड्रेनेज कर दी, पेशेंट ठीक हो गया, घर चला गया। अब वो फॉलो अप पे आया है, तो आप उसको एक खास बताना चाहेंगे? सर एक क्या चीज बता, क्या एक खास क्या बताएंगे उसको फॉलो अप में? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या बताएंगे ड्यूरिंग द फॉलो फॉलो अप में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या बताएंगे? फॉलो अप में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज एनल एब्सेस से, पेरिनल एब्सेस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन क्या लें या सीक्वल क्या? whether there is any discharge persistent fistula तो नहीं बन गया, there is any fistula और बिल्कुल ठीक है, फिस्टुला ही है। हाउ मेनी पेशेंट्स डेवलप पेरिनल फिस्टुला? Patients with perineal abscess, how many of them develop almost 10 to 15% people develop perineal fistula if there is a extension into intersphincteric area. And okay, there is that's the end of the scenario. अब इसमें Comments देखिए, ये जो please. है ना,
30 to 40% of the patient पेरिनल एब्सेस की जो है जी ना, भाई 1/3 हाँ सॉरी 1/3 ऑफ द पेशेंट्स, यानी कि हाँ 30% पेशेंट्स जो है वो डेवलप होता वो है। डेवलप ही कैन डेवलप द फिस्टुला, तो आपने फॉलो अप पे उसको जरूर बताना है कि जी लेटर ऑन ही कैन डेवलप द फिस्टुला, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है। ठीक। अच्छा दूसरा हिस्ट्री में ना, जब आपने पूछा ना हिस्ट्री, तो अब ये था ना कि पेनफुल स्वेलिंग अराउंड पेरिनल रीजन, तो आप उनसे पूछ लें कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द पेन, इज इट एसोसिएटेड विद द फीवर। ठीक है। तो आप बहुत जब ड्यूरेशन पूछेंगे वो ये 2-3 दिन की हिस्ट्री है, तो अब एक्यूट अगर फीवर भी एसोसिएटेड है, तो आपको ये मतलब इन्फ्लेमेटरी है, तो क्लियर हो गया ना। इसमें दो ही कॉज है ना, या थ्रोम्बोज्ड हेमोरॉइड हो सकता है, या हाँ ये पेरिनल एब्सेस हो सकती है ना। बिल्कुल, या फिर इसमें एमआरआई प्रोलैप्स कराने की हेमराइड्स हो जरूरत सकते थी? हैं। हाँ एमआरआई कराने की कोई जरूरत थी इसमें? एमआरआई इफ इट्स अवेलेबल, अगर इश्यू रेक्टल एब्सेस है तो सर दूसरी तरफ भी हो सकती है ना। सर आप वो एक और छू भी होती है, अच्छा, दूसरा जो है ना, आपने इसकी क्लासिफाई करना होता है इसको, इसकी तो अगर 4-5 4 टाइप की क्लास। सेंटीमीटर अवे, हाँ इतना, अगर सिंपल पेरिनल एब्सेस है उसमें तो नहीं, लेकिन अगर इश्यू रेक्टल एब्सेस है, वो बिल्कुल दूर, जैसा 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एनल मार्जिन या दिया हुआ है। सुपरा लिवेटर पड़ी हुई तो नहीं है, सुपरा लिवेटर नहीं पड़ी हुई। हाँ मेरा ख्याल, तो आई थिंक इट्स अ गुड अप्रोच हैविंग एमआरआई, ऑल्दो इफ द एमआरआई इज नॉट अवेलेबल देन पेशेंट इज आपके एब्सेस है, सेप्सिस में है, तो फिर आईएनडी उसकी है। सर उमर क्या कहते हैं आप, एमआरआई कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? मैंने तो नहीं कराया था। मैंने कहा था कि मैंने इसको बात ये की थी, मैं उससे हिस्ट्री लूंगा, उसका एग्जामिनेशन करूंगा, हिस्ट्री में ये चीजें पूछूंगा कि फीवर है तो नहीं है, ठीक है, एक ही है और है कि कितने ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है, ये चीजें पूछी थी। उसने मुझे पहले ही कह दिया था कि 3 दिन की हिस्ट्री है, एक ही अवेलेबल है, एक ही इसको बनी हुई है और फीवर है उसको। ठीक है, फिर मैंने कहा अच्छा जी एग्जामिनेशन करूंगा। उसने एग्जामिनेशन में उसने साथ ही फाइंडिंग बता दी। मैंने कहा ये तो एनएल से कहते करेंगे क्या, मैंने कहा इसको दाखिल करूंगा एनपीओ। अच्छा ये आपने पूरा बताना है प्रोटोकॉल, दाखिल करूंगा इसको एनपीओ करूंगा, ओटी स्पेस अरेंज करूंगा, एनेस्थेटिक से कोऑर्डिनेट करूंगा, एंटीबायोटिक स्टार्ट करूंगा, आईवी फ्लूइड स्टार्ट करूंगा, पेन किलर दूंगा, ठीक है, रीअश्योर करूंगा पेशेंट को। ठीक है, ये करने के बाद आपने उसकी सर्जरी स्पेस का लिए मैंने उसको इस तरह कराया था। मैंने इसको एमआरआई उसकी मैंने नहीं कराई थी। अच्छा लेकिन मेरा की अप्रोच ठीक है, एमआरआई बोल रही क्योंकि बड़ा दूर हुआ है, एमआरआई कराने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि 8 घंटे तो लगेगा, तो एमआरआई अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर वो, वरना वो आपको खुद ही कह देगा कि एमआरआई अवेलेबल नहीं है, आप बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये भी सर इतना ही सिनेरियो था, ये भी खत्म हो गया। हाँ अब और क्या है मेरे पास। चले एक आखिरी सिनेरियो मेरे पास है, वो ये है कि एक पेशेंट है, उसके morbidly obese patient with BMI of 45 went for bariatric sleeve gastrectomy. On day 7, he has tachycardia, 137 per minute, heart rate. There is fever, there is dehydration. What investigation will you do? I would like to do contrast enhanced CT scan with oral contrast, oral and IV contrast, to see whether there is any leak or not. Along, Okay. There is a small leak from the staple site. okay, ठीक है, yes, 4 to 5 centimeter collection near the upper end of the repair. okay. Then I will How will you proceed? ask the radiologist to put in a drain, CT guided or ultrasound guided drain in the collection area to drain the leak, and I will pass. Request gastroenterologist to pass nasoduodenal tube, and I will contact pediatric surgeon who has operated upon the patient to if he is available, I will notify him. Otherwise, this patient has to be admitted in high dependence unit. I will give IV fluids, antibiotics, painkiller, and see the response whether he is improving or not after drainage. Or if he, and I will then consult that surgeon who has operated and see whether there is a leak persist or not. I will make the patient NPO and put him on total power enteral nutrition. And if he improves, then okay. Otherwise, we have to take down the
open the patient if it does not improve with conservative measures, and do some bypass procedure then to repair the. Over. Scenario ended या है भी हो क्वेश्चन इसमें? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही सर। नहीं, बस दिस इज एंड ऑफ द सिनेरियो। इसमें जो सोल्यूशन था बस यही था कि सीटी गाइडेड रेस्पिरेशन करनी है बस। अच्छा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस थी वो सीटी स्कैन थी, कंट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन, और उसके बाद करना क्या है, सीटी गाइडेड एस्पिरेशन करनी है। और अगर आप जिस तरह उस्मान ने सही बताया कि आप परक्यूटेनियस रेडियोलॉजिस्ट की मदद से आप उसमें ड्रेन डालना चाहें तो डाल दें, तो ये है इसका सोल्यूशन। बाकी उसने, मैंने पूछा था मैं पीडियाट्रिक सर्जन से कांटेक्ट करूंगा, उसने कहा जी वो अवेलेबल नहीं है, वो 10 दिन बाद आएगा। और बेसिकली वो सिर्फ यही सुनना चाह रहे थे कि आपने सीटी गाइडेड एस्पिरेशन करनी है। ठीक लेकिन है। इन सब के अच्छा अंदर सर आपने वो जैसे जैसे हेपेटोबिलियरी है तो आपने हेपेटोबिलियरी वाले से कांटेक्ट करना है, बेरियाटिक है तो आपने बेरियाटिक सर्जन से कांटेक्ट करना है, वैस्कुलर है तो वैस्कुलर सर्जन से कांटेक्ट, आपने कांटेक्ट सबसे जरूर करना है। आपका होगा नहीं कांटेक्ट, लेकिन आपने कांटेक्ट कराना जरूर है। अच्छा सर ये बताएं कि अब ये किताब में तो लिखा है टेक डाउन द एनास्टोमोसिस रीड डू करें ना, अब वो तो हमने नहीं बताना ना, क्या बताना है? वो देखिए टेक अभी टू खुद उसका तो क्यों एग्जामिनर तो करता है? देखो आपने कर दिया ना, परक्यूटेनियस ड्रेन डाल दिया, डलवा दिया अभी। अब उसके आपने हाँ। बता दी, अब उसका कहेगी आई विल मॉनिटर द पेशेंट कंडीशन, फुल हम्म स्टॉप। फिर एग्जामिनर हम्म को बोलने देना कि हम्म आपका काम था कि पेशेंट। इमरजेंसी रिलीव कर दी, आपने इमरजेंसी रिलीव कर दिया, उसके बाद वो आपको खुद गाइड करेगा। अगर वो कहेगा हाँ, अच्छा यार इसके साथ सेटल नहीं हो रहा, आपने कर दिया, इतना डिफेक्ट आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, हम्म आप बताएंगे जी मैं पीडियाट्रिक सर्जन को बुलाऊंगा, ओके जी वो अवेलेबल नहीं है, फिर क्या करोगे? तो फिर आप बता दो जी मैं इसकी रिपेयर कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, जो भी आपके फर्दर ऑप्शन है वो आप तब बताओगे। हम्म, लेकिन आपने वो काम करना है जो कि आपने इमरजेंसी रिलीव की, उसके बाद फर्दर आगे गए। ठीक। ठीक है। तो मेरा बाकी ख्याल। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। हम्म, और भाई ये जीसीएस याद कर लेना, जीसीएस पूछते हैं। ठीक है सर। अच्छा मतलब क्या कह रटे स्कोर की तरह स्कोर पूछते हैं या कोई सिनेरियो दे देते हैं जीसीएस? अरे मेरा मेरा सिनेरियो था कि खातून आई है, ठीक है, हम्म यंग खातून है, वो ईआर के अंदर आई है, अनकॉन्शियस है, हम्म ठीक है। तो उसका क्या कहते हैं, कैसे प्रोसीड करेंगे? तो बता दिया जी वो ए बी सी डी फलां ये वो दिस एंड सारी स्टोरियां डाली। तो उसने कहा जी इसका जी के स्कोर आप नहीं चेक करेंगे? तो मैंने कहा कर लेंगे चेक सेकेंडरी सर्वे के अंदर। तो उसने कहा कि अच्छा कितना होता है? तो जीसीएस किसने मुझसे वो सुना, जीसीएस का टेबल, फिर उसने पूछा कि इसमें इंपॉर्टेंट नंबर्स कौन से हैं। चले वो आपसे पूछता हूँ, इंपॉर्टेंट नंबर्स क्या है जीसीएस? सर इम्पोर्टेंट नंबर हाँ, इंपॉर्टेंट स्कोर्स। इसमें मस्कुलर जो है ना, मेरा ख्याल है जो ये पावर वाला स्कोर है ना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है इसमें। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि नंबर्स पूछना चाह रहा हूँ। चले जैसे 3 एंड 15 है ना, अच्छा ठीक है। जस्टिफाई अच्छा करते हैं किसी चीज एट को, इसके एट है, अलावा। 8 है 13, इस तरह ये कि जो है ना सीवियर हाँ, मॉडरेट, 8 आ गया, चल 8, वाई इज 8 सिग्निफिकेंट? बिकॉज इट इज इंडिकेशन फॉर एंडोट्रेकियल ट्यूब पेशेंट कैन नॉट मेंटेन एयरवे। इंट्यूबेशन की हाँ, इंट्यूबेशन की, और उसके बाद उसके इंडिकेशन है, बस यही पूछेगा। 13 से ऊपर होगा तो दायरा माइल्ड होगा, 13 से 8 तक होगा तो मॉडरेट होगा, उसके नीचे सीवियर होगा। ये आपको पता है। 3 आपको पता है, 15 आपको पता है। तो दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए स्कोरिंग के, मस्कुलर के कितने आएगी, कितने फलां के कितने। उसके आगे फर्दर तफसील भी पूछेगा कि जो है ना 6 मसल के ग्रेड बता दें, 4 उसके बता जी दें। जी भाई, वो आपने वो पूरा सुनेगा आपसे, अगर अच्छा। सुना तो वो पूरा सुनेगा। ठीक। क्योंकि मेरे पास जो सिनेरियो आया था इसमें कुछ भी नहीं था, उसने सिर्फ जीसीएस से सुनना था। ये स्टोरी थी कि वो खातून आई तो ये हो गया तो वो हो गया, बेसिकली जीसीएस सुनना चाह रहा था। उसके अंदर वो 8 जो स्कोर 8 है उस पर पूछना चाह रहा था कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है बेसिकली। हम्म तो ये है मेरा, तो ये मुग्या वाइवा जो था, रैपिड क्वेश्चन वाला ये सारा वाइवा था, ये तो हो गया हमारा। और ठीक ही आपने बताया, कोई इतना वो नहीं है मसला। ठीक है माशाल्लाह यार अपना। हाँ, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, यू विल क्लियर इट इंशाल्लाह।
सर पर दुआ करें, जाना बड़ी ब्लास्ट हुई है। अच्छा रिकॉर्डिंग हाँ, एक चीज ये शफाकत इसके अंदर एक्सपर्ट है, ये बताएंगे आपको कि ये लिवर जब आप देखा नोड्यूल आपको मिल गए, आप सर्जरी कर रहे थे, ट्रॉमा सॉरी ट्यूमर सर्जरी आप कर रहे थे कोलन की, ठीक है, उसमें आपने रिजेक्शन तो कर दी, लेकिन ऑन टेबल आपको पता चला कि इसके अंदर लिवर में नोड्यूल पड़ा हुआ है, क्या करेंगे आप कहते हैं जी मैं इसको निकाल दूंगा, क्यों, कब निकालेंगे, कैसे नहीं निकालेंगे, इसकी इंडिकेशंस हैं कि कितने नोड्यूल हों, एनाटमी, उसके नंबर ऑफ नोड्यूल, अगर वाइड स्प्रेड है फिर तो नहीं निकाल सकते, अगर एक दो हैं तो आप निकाल सकते हो, तीन है तो भी अगले की उसकी लोकेशन ऐसी हो, फिर आप ये कि उनका साइज है, बड़े साइज के तो शायद आप ना निकाल सकें, छोटा है तो पड़ा हुआ है वो आप निकाल देंगे, अगर वो पोटा के पास पड़े तो आपके लिए निकालना मुश्किल होगा, वो आप नहीं निकाल सकोगे, वाइड स्प्रेड है तो नहीं निकाल सकोगे। हाँ, उसमें एक वो पूछता है फंक्शनल रिजर्व जो है ना लिवर का, कि कितने परसेंट लिवर आप निकाल सकते हो, सर ठीक है, 40% है सेरोटिक, और पीछे 25% होना चाहिए नॉर्मल, और 75 निकाल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसका एक और नाम है, मतलब फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी इसका फंक्शनल करके कोई नाम है, आई डोंट नो क्या इसका लिवर नाम। फंक्शनल लिवर रेजिड्यू। हाँ, फंक्शनल लिवर रेमिनेंट नहीं, फंक्शनल लिवर रेजिड्यू, रेमिनेंट रेमनेंट। रेमिनेंट है मेरा ख्याल है। रेमिनेंट ये ये आप देख लीजिएगा, ये आपसे पूछेगा, ये 25% इसकी ऑफ ये ना पॉपुलेशन। इंडिकेशन, हाँ रिमेनिंग कितना होना चाहिए, यानी कि आप 75% निकाल सकते हो, 70% आप निकाल सकते हो, तो 70। इसकी जो है ना, जी सर। इसकी आपने ना वो इंडिकेशंस देख लेनी है कि वो एनाटोमिकली कहाँ कहाँ पड़ा हो, नंबर कितने हैं नोड्यूल्स के जिसपे आप नहीं निकाल सकते, कितने निकाल सकते हो, साइज कितना बड़ा हो तो आप निकाल सकते हो, ये एक बार देख लेना, ये इसमें लिखी हुई है किताब के अंदर ही। जी सर ठीक। तो ये है, ये इंपॉर्टेंट चीजें तो यही है बस। थायराइड वगैरह आपने कर ली है, थायराइड, ब्रेस्ट, कोलन कैंसर, ये स्टमक, पैनक्रियाज के अंदर कभी कभी पूछ लेते हैं सिस्ट वगैरह, इसके अलावा गॉलस्टोन डिजीज, कोलिसिस्टाइटिस, कोलेंजाइटिस, सीबीडी इंजरी, और ट्रॉमा के दो सिनेरियो, एक सिनेरियो आता है, फिर उसके बाद बस मोटा मोटा यही है, इसके अलावा कोई खास है नहीं चीज। ठीक हो गया। हर्निया, हाँ हर्निया हाँ हर्निया की तो वो उनका बड़ा फेवरेट सिनेरियो जो हमारे यहाँ भी पूछते हैं कि वो आ गया है, ग्वाइनल हर्निया है, बहुत बड़ा है, आपने ओपन किया तो वो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो अब क्या करेंगे, वो अंदर क्या कहते हैं, आप कहते हैं मैं ग्वाइनल अप्रोच से इसको निकाल के इसका रिजेक्शन एनालिसिस कर दूंगा, वो कहते हैं अच्छा कर लोगे, हाँ जी कर लेंगे, अच्छा चलो अंदर चला गया, आप क्या करोगे, वो आप कहते हैं मैं खोल के करूंगा, मतलब प्रोटमी कर दूंगा, वो फिर अच्छा कहेगा चलिए आपने कर दिया लेकिन मूड गंदा है, मैश डालेंगे नहीं डालेंगे, कौन सा डालेंगे, हाइब्रिड डालेंगे, केड़ा डालेंगे, वो आपसे इस तरह के बड़े पेट क्वेश्चन हैं जो ये पूछते हैं हर्निया के ऊपर। कोई भी हर्निया आप लें, या आपसे ये जरूर पूछेंगे कि आप मैश कौन सा डालेंगे, और अगर वो वूंड डर्टी है तो उसमें कौन सा मैश डालेंगे, मैश आपने लाजमी डालना है तो आप कौन सा डालेंगे, आप कहेंगे मैश नहीं डालता मैं, कहेंगे नहीं मैश आपने डालना है, कौन सा डालेंगे, तो फिर आपने उनको बताना है जी मैं हाइब्रिड डाल दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सारी चीजें आप बता देंगे तो वो उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। नहीं, हाइब्रिड डाल सकते हैं इन्फेक्टेड वुंड में, क्या कहेंगे, हाइब्रिड डाल दें? यार ये दिलवाते हैं ना आपसे, वो पूछते हैं अगर आपको डालना पड़े तो कौन सा डालेंगे। ये हाइब्रिड क्या होता है यार, उमर बताइए। जो जो मैश की सर रिकमेंडेशन है ना, जो कंटामिनेटेड फील्ड है उसके अंदर अभी जो देते हैं कि जब क्लीन ज्यादा कंटामिनेशन नहीं है तो कहते हैं मैश कैन बी कंसिडर, यू कैन प्लेस द मैश। ठीक है। अ, बिल्कुल। जो रिसेंट इसकी रिकमेंडेशन है, ठीक है। लेकिन फिर भी अपना मेरा ख्याल बेहतर है कि मैश की बजाय इंग्वाना हर्नी है ना, तो रादर देन पुटिंग इन मैश, जो डिसऑर्डर अपेयर है ना, इट्स मोर अप्रोप्रिएट। डार्निंग भी है, डिसऑर्डर जो डिसऑर्डर की बड़ी अभी अच्छा, आपने इन है। आपने उस पे वाइवा में यही कहना है कि हम नहीं डालेंगे मैश, हाँ, ठीक है, आपने पूरा ये वो रखना है कि मैं नहीं डालूंगा भाई। मैं नहीं डालूंगा, लेकिन अगर आपको बहुत फोर्स करता है ना, हाँ तो फिर वो आप कह देंगे अच्छा चले, अगर डालना बहुत ही मजबूरी है तो फिर ये डाल सकते हैं, वो एक साइड पे से उसके वाइकल होता है, एक साइड पे उसके प्रोलीन होता है, तो वो इस तरह का मैश आता है, नहीं इसको ये वो हाइब्रिड बोलते हैं। वो जो है क्या जो कहते लिवर हैं, मैशेस टिश्यू होती है ना, टिश्यू रिपेयर। पीटीएफई कोटेड मैशेस होती हैं, जो दूसरी वाली जो ना डिफरेंट मैशेस हैं, जो हमने पहले भी इस पे किया था ना। हाँ बिल्कुल। तो नहीं, उसको ये क्यों नहीं कह सकते कि हम टिश्यू रिपेयर करेंगे? आपकी मर्जी, आप कह दें। हाँ मतलब वो तुला हुआ है हाँ अगर। हाँ, नहीं वो है ना, डार्निंग कर सकते, यू कैन डू द डार्निंग और डिसऑर्डर रिपेयर जो है ना, तो इट्स डाइस भी वेरी कर सकते सिंपल। हैं।
हाँ शोल्डर डाइस भी शोल्डर कर तो सकते चलो हैं। फिर भी है ना कि आपका जो है ना आपका एक्सपीरियंस है उसमें नहीं है, तो लेकिन ये वो तो सिंपल है, डिसऑर्डर रिपेयर इज वेरी सिंपल। हम्म। तो वो आप रिपेयर जो है ना, रादर देन पुटिंग इन द मैश। हाँ लेकिन वो आपको ना लेके आएगा, हम्म कहेगा नहीं नहीं डालने डालना है, कौन सा डालोगे। हम्म। चलो आखिर में फिर कह देंगे कि जरा हाइब्रिड मैच डाल सकती है। आखिर में ही कहना है, पहले नहीं कहना। हम्म। असल में ना सर, मैंने तो एक दो किताबें देखी हैं, वो कहते हैं आपको ना घसीट के जानबूझ के ना ट्रबल जोन में लाने की कोशिश करते हैं ना। आप सीधी बात बता भी रहे हैं तो फिर भी कहेंगे कि नहीं नहीं ये कैसे कर सकते हैं। बेसिकली तो ये मसला है ना। हम्म। वो आपकी सेफ्टी चेक कर रहे होते हैं कि आप कितने सेफ हैं। आपने सेफ रहना है, आपने इनकार करना है कि नहीं ये प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं करूंगा, ये नहीं होगा। अगर बहुत ही मजबूरी पड़ गई तो ये जो जरा बेहतर टाइप चीज अवेलेबल है हम ये यूज कर सकते हैं बस। हम्म। हम्म। और इसकी रिपेयर तो इनगोइनल अप्रोच से ही होगी ना, अगर गट गैंग्रीनस है या जो भी है, रिपेयर तो इनगोइनल जी से हो सर, जाता अगर गट गैंग्रीनस है आपको निकल सकती है बाहर, और बाहर आपने सारी गैंग्रीनस गट निकाल दी है, उसके बाद आप रिजेक्शन एनास्टोमोसिस कर सकते हैं। आपको इतनी वो प्ले दे रहा है तो आप कर लें, लेकिन अगर वो ये कहता है कि नहीं गट ही अंदर चली गई है, फिर क्या करेंगे। और वो है। मोस्ट प्रोबेबली अच्छा कहेगा कि उसको, गट अंदर चली गई है। तो उसमें rather than doing a लेप्रोटमी, आप उसके राइट लिफोसा से यू कैन मेक इंसिजन, ठीक है। और आपके गैंग्रीनस गट थी, ऑब्वियस गैंग्रीनस से आपको रिसेक्शन करनी थी, तो उधर से आप उसको निकाल लें। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, आपने देखा होगा टाइडी नहीं होगी, तो उधर से भी वो कर सकते हैं। अगर पहले सर इंडक्शन के टाइम पे ये स्लिप कर गई है गैंग्रीनस, आपके स्ट्रैंगुलेटर हर्निया था, एट द टाइम ऑफ इंडक्शन वो रिड्यूस हो गया, तो उसमें फिर है कि आपने उसको स्कोप डाल के देख ले, तो हो सकता है आपकी बावल इतनी वाइबल है तो कुछ भी ना करने की जरूरत ना हो, बिल्कुल और बाकी आप उधर से बिल्कुल रिपेयर कर। बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म। ये इंपॉर्टेंट बात बताइए कि अगर एट द टाइम ऑफ इंडक्शन वो अंदर चला गया, फिर आपने लेप्रोस्कोप डालना है पहले, और देख लें हाँ कि गट ठीक है कि नहीं है। हम्म। ठीक है। और उसमें गट खराब हो तो ठीक फिर हो गया सर। डायरेक्ट से खोल दें लेप्रोस्कोप में। हाँ वो तो फिर आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है, फिर क्या ठीक है ओपन कर लेंगे। हम्म। बस सेफ्टी फर्स्ट। अच्छा, एब्डोमेन खोलने में भी मना तो कोई नहीं है ना कि आप कहें नहीं मैं लेप्रोटमी करके देखूंगा। यहाँ पे यहाँ पे वैसे ना, यहाँ पे जितना ये करते हैं कोशिश इनकी भाई ओपन ना, ये लेप्रोस्कोपी जो अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड भी यही है कि जितना, मिनिमल इन्वेसिव, हाँ उसमें मिनिमल रहना है कि इन्वेसिव आप पे रहना। ओपन मतलब एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर उधर लेके जाएं। अब देखें ना स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया की उसने जो जब सिनेरियो आपको देंगे कि वो देंगे जी आपका इंग्वाइनल हर्निया है, स्ट्रैंगुलेट हो गया है, उसके हालात खराब हैं, आप कहेंगे जी मैं इसको ओपन करूंगा, यहाँ से इंग्वाइनल अप्रोच से मैं जाऊंगा, लेप्रोस्कोपी नहीं करूंगा, इंग्वाइनल अप्रोच से जाऊंगा। हम्म। ठीक है, तो उसके बाद वो पेट के अंदर डाल देगा, फिर आपसे पूछेगा क्या करोगे, या वो कहेगा कि अच्छा चलो ठीक है आपने कर दिया, कर लोगे, वो हाँ जी मैं कर दूंगा रिजेक्शन के साथ साथ चलिए, वो आपसे इस तरह के सवाल पूछेंगे। अगर आप आपने सेफ रहना है, अगर आप कहें जी मुझे, अगर वो आपको थोड़ा सा भी हिंट देता नहीं आप इंग्वायरल रिपोर्ट से आपको नहीं काम हो रहा, आप कहें जी, मैं रिपोर्ट में कर लूंगा, फिर इसका शफाकत बताया कि राइट साइड से दे देंगे, पेडिसेक्टमी वाला इंसिजन देके आप वहां से कर लें। ठीक है, लेकिन आपने रहना सेफ है। हम्म। जो ना, जो मैंने कहा ना राइटिलिफोसा की, मैं अपने तो से नहीं कह रहा, ये भी उसमें गाइडलाइंस के अंदर ही है कि अगर नहीं गैंग्रीन नहीं का, मुझे पता है सर, आपने जो हाँ बताया बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ दर हाँ। टाइप ऑफ लेप्रोटमी, आपने एक लेप्रोटमी का इंसिजन की साइड डिफरेंट होगी, वो है तो बेसिकली कॉन्सेप्ट वैसे में तो तो लेप्रोटमी। वैसे तो हम ये करते हैं, उसको डीप रिंग को खोल लेते हैं ना, पैरेलल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, वहीं पे थोड़ा सा डिवाइड करें एग्जैक्टली, और आप उसी को एक्सटेंड कर लें, आप उसको इतना बड़ा कर लें कि आप वहां से सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो जैसे सर मिजान के सवाल वाइवा में बहुत था, ही तो सर बात। मिजान ने कहा था मैं यहीं से करूंगा, मैं इसको बड़ा कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। सर ने लेप्रोटमी नहीं की, सर ने सारा किसी यहीं से खोल खाल के ना कि मैं फर्दर इसको एक्सटेंड करके देख लूंगा, तो यहीं से मैनेज कर लूंगा मैं। तो सर ने ये अप्रोच की थी, सर का भी एग्जाम तो क्लियर ही है। हम्म। सही। एग्जाम है कब? सर परसों है। सर अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, आपने आई परेशान होप नहीं सो। होना निकल। बहुत ही थायराइड ब्रश कर लिए ना? जी सर कर तो लिया है। कोलोरेक्टल कर लिए? बस सर कुछ ना कुछ कर तो लिया सारा, आप तो तकरीबन जो है ना रिवीजन कर रहा हूँ आजकल। बहुत गुड हो गया। कोलोरेक्टल में आप याद रखिए कि जो है ना उसका रेक्टल वाला, एनल एनल वाला पोर्शन,
इनोरेक्टल, उसके अंदर ये पता ही होगा, आपने किया होगा, उसमें आपने वो पहले देनी है, रेडिएशन पहले देनी है, और बाकी जो क्लोनिक उसमें आपने कीमो पहले देनी है। जी सर। मोटे तो अभी ये इनके वो कैच पॉइंट्स होते ठीक होगा। तो मेरा हैं। ख्याल बाकी है फिर बाय बाय स्टेप तो आपने इतनी दे दिए होंगे कि इंशाल्लाह ये मसला होना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह। चलें सर। तो जी सर। तो चलें, थैंक यू और भाई आपने टाइम हमें थैंक यू दिया। सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया सर। हाँ, नहीं सर, मैं पहले भी आता, लेकिन मैं मेरी रूटीन कुछ ऐसे चल रही थी कि मैं पहले आ नहीं सका। आज मैं फ्री था तो मैंने कहा मैं आज ज्वाइन तो करूँ ना, आज देखते हैं क्या सीन चल रहा ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। तो थैंक यू बस सो मच मेरी सर तैयारी कर। नुमान और उस्मान। थैंक यू भाई। थैंक यू सर तो मेरा शफाकत, ख्याल है थैंक यू फिर सर मोटिवेशन, थैंक यू सर नुमान। ओके, अस्सलाम वालेकुम। सलाम है। बहुत सलाम। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।